Hello friends, very good morning. Today we'll start the session Googling Google. Now regarding Googling Google, this is when we are talking about Googling Google, हम सभी लोग Google के ऊपर जाके काफी Googling करते हैं. So what's new in this particular session and what I'm gonna give you in this particular session that we have to see. Some instructions for you all. Please be mute yourself. Whenever you have any doubt, you can always ask on what chat window. Those who are on YouTube live, you can even ask your doubts on what YouTube chat window. I'll definitely check at the end and we'll have what question answer session, okay, at last. So this will be almost 1 hour session and I'll be happy if you go with what hands-on with me, okay. So what exactly is this session? So Googling Google, myself, Mahesh Sangvi, working as professor and head at Department of Computer Engineering, SNJP's late Sir Kantabai Bhavarlaji Jain College of Engineering. I'm really thankful to Dr. M.D. Kokate sir, our principal, for giving us this opportunity to start such type of activities in our college to develop the skill set of our students. I'm really thankful to all the coordinators, Professor Dhomse, Professor Achlia sir, Professor Ambore sir, for giving me this opportunity to discuss with all the students, and special thanks to all the students for your support in this entire session. I hope you support me in this entire session and you will enjoy the entire session. So let's look at what exactly is Googling Google. So this is ultimately what we have to uncover various features of Google. Google has great big family having great product list, and we have to deal with these topics today. So in this topic, if you observe here, there are certain things like what exactly is Google family, then Google search, how to do the Google search. Now again you will tell me कि सर इसमें क्या नया है, Google search तो हम लोग हमेशा करते हैं, लेकिन मैं कुछ नया आज आप लोगों को देने की कोशिश करूंगा. Then we'll see about what exactly is signature, Gmail signature, how to set up multiple signatures and how to make our life simple. Then we'll see Gmail mail scheduling, then snoozing, and how to send confidential email. Okay, and we'll sum up this session with Gmail filters and Google Calendar. So let's look at the huge family of what Google. Google has this many products, and trust me, the list is what later here. Okay, there are so many products, but highly dominating products are this many. Okay, you might be using all the products like Google Docs, Gmail, Google Drive, Google Search, YouTube, Google Slides, Google Sheets, Google Calendars, Google Forms, and Google Classroom. These are heavily used tools, out of which in this discussion today we will see the use of Google search, then the use of Gmail, then the use of Google Calendar. And dear students, I have guaranteed today I'll definitely give you some new feature of using Google search, Gmail, as well as what Google Calendar. So please hold on. It should not happen that कि इसमें क्या नया है सर, क्या नया हम लोगों को देने वाले हैं. At the end of this session you will understand. So let's look at Google search. आप सभी लोगों ने Google search किया रहेगा और Google search करते वक्त काफी चीजें हम लोगों को समझ में आती है. For example, यहाँ पर जब भी आप Google search करोगे, there are different ways of what searching data using Google search. So if you observe here, you all have entered into what Google search, and this is one of the advantage of using Google advanced search. In this Google advanced search, जब भी हम लोग कोई चीज सर्च करना चाहते हैं, कई बार हमारे पास गूगल को जब भी कोई क्वेश्चन हम लोग करते हैं, thousands of answers are coming. इतने thousands of answers यदि आएंगे तो इतना कौन पढ़ेगा. तो हम लोगों को तो क्या चाहिए, accurate answers जो भी है वो चाहिए. तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना रहेगा, एडवांस सर्च का यूज करना पड़ेगा. नाउ व्हाट इज देयर इन दिस एडवांस सर्च. तो एडवांस सर्च में क्या क्या आता है, तो यहाँ पर कुछ चीजें मैंने आपको दिखाई है. दैट इज व्हाट, कि क्या क्या है ये सारे फीचर्स, ये मैं आपको दिखाता हूँ. सबसे पहले यदि यहाँ पर आप लोग देखने की कोशिश करोगे तो आपको सबसे पहले दिखता है कि व्हेन वाज इट लास्ट अपडेटेड. यानी हम लोगों को कोई फाइल चाहिए, जब भी आप हमारे ब्लॉग के ऊपर जाते हैं तो सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि कब लास्ट टाइम इसको अपडेट किया गया है.
जैसे कि आप सभी लोग 2020-21 में आ चुके हैं, कोई सेकेंड ईयर में है, कोई थर्ड ईयर में है, कोई फाइनल ईयर में है, तो आप सभी लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि 2020 जून के आगे आपका जो सेमिस्टर स्टार्ट हो रहा है, जो एकेडमिक ईयर स्टार्ट हो रहा है, क्या सच में उसमें अपडेटेड चीजें डाली है टीचर्स ने? तो आपको वो कहां से ढूंढते आएगा? When was it is updated at last? Then the next feature is what? Search reliable domains like .gov और .edu. हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो भी है ये समझ में आती है कि हम लोग यदि गवर्नमेंट के साइट के ऊपर जाते हैं तो उसका एक्सटेंशन हम लोगों ने देखना जरूरी है, तो आप डायरेक्टली एक्सटेंशन के तहत इसको क्या कर सकते हैं? सर्च कर सकते हैं. Then there is use of what? Files. Many times we are searching PDF फाइल्स और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस, तो कई बार आप लोग सेमिनार के या प्रोजेक्ट के टॉपिक के लिए प्रिपेयर करते हैं तो आप रेडीमेड प्रेजेंटेशंस ढूंढने की कोशिश करते हैं. तो रेडीमेड प्रेजेंटेशंस आपको कैसे मिलेंगे वो भी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं. देन विल सी हाउ यूसेज राइट्स कैन बी वर्क लीगली. तो ये सारी चीजें हम लोग अभी आने वाले हैंड ऑन सेशन में देखने वाले हैं. नेक्स्ट पार्ट, कितने ऑपरेटर्स यहाँ पर है, तो आप देखोगे तो इतने ऑपरेटर्स का हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं. Google search has advanced search facility and we can use all these operators on our Google search. So why to make it delay? मैं ये सारे ऑपरेटर्स के बारे में आपको स्लोली इंफॉर्मेशन दूंगा. हम लोग डायरेक्टली हैंड ऑन सेशन के लिए जाते हैं. ओके, सो आई विल शो यू हाउ टू यूज दिस गूगल ऑपरेटर्स. सो लेट्स ओपन google.com. दिस इज व्हाट द साइट. आपको एडवांस सर्च पर जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पे चीजों क्या कर सकते हैं? सर्च कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, आपको सर्च करना है आपका खुद का नाम, तो मैं अपना नाम यहाँ पर डाल रहा हूं, महेश संघवी. ओके, ये नाम जैसे ही मैं यहाँ पर डाल रहा हूं, मैंने एंटर दिया है महेश संघवी डाल के. आप ऑब्जर्व यहाँ पर करें. ओके, 3,19,000 रिजल्ट्स आर देयर. कितने रिजल्ट्स आए हैं? 3,19,000. अब आप मुझे बोलिए कि एग्जैक्ट महेश संघवी आपको जो चाहिए था वो तो आपको इसमें मिलेंगे नहीं, तो आपको काफी सर्च यहां पर करना पड़ेगा. सो इंस्टेड ऑफ दिस आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? डबल कोटेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं. डबल कोटेशन यानी क्या? आप यहां पर देखिए कि मैंने डबल कोटेशन आप लोगों को यहां पर दिखाया है. डबल कोई भी चीज आप डबल कोटेशन में यदि डाल देते हैं, फॉर एग्जाम्पल महेश संघवी, ये चीज मुझे क्या करनी है? डबल कोटेशन में डालना है. डबल कोटेशन का मीनिंग होता है, the meaning of double quotation is that you can able to search exact stream. For example, I want Mahesh Sanghvi as it is, so I'm using this. तो मुझे कहाँ जाना रहेगा? यहाँ पर Google सर्च पे जाना रहेगा. अब मैंने जो पहले महेश संघवी नॉर्मली दिया था, अब मैं क्या कर रहा हूँ? उसको डबल कोटेशन में दे रहा हूँ. और देखिए क्या होगा. जैसे ही मैं सर्च कर रहा हूं, अब देखिए जो रिजल्ट 3 लाख एंड समथिंग आ रहे थे वो अब रिड्यूस हो गए 15,900 तक आ चुका है. ओके, 15,900 तक वो आ चुका है. यानी काफी जो लाखों में रिजल्ट्स जो थे वो 1000 में आ गए. और भी बेहतर सर्च हम लोगों को यदि करना है तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ? महेश, मेरा पूरा नाम यहाँ पर डाल देता हूँ. ओके, और वो सर्च करने की कोशिश करता हूँ. जैसे ही मैंने पूरा नाम अपना यहाँ पर डाला है, आप देखिए रिजल्ट्स जो भी है वो डायरेक्टली 4 पर आ चुके हैं. सो अर्लियर रिजल्ट्स वेर इन लैक्स, then results were in 1,000, and now results in single digit number, that is 4. And it is simple for me to search my own data easily. Okay, 4 ही लिंक्स आए हैं तो चारों के चारों लिंक्स में ओपन करके अपना सर्चिंग यहाँ पर इजीली कर सकता हूँ. तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो भी आपको एग्जैक्ट सर्च करना रहता है, आप यदि डबल कोटेशन का इस्तेमाल करोगे तो आपको काफी रिजल्ट्स में बदलाव जो भी है वो आएंगे. अब इसी का एग्जाम्पल मैं देता हूं. जैसे मेरा पुराना नंबर था, 98 वाला नंबर था, मुझे चेक करना है कि मेरा 98 वाला नंबर कहां पर एग्जिस्टिंग है. तो मैं 98 नंबर जो भी था मेरा 98 वाला वो यहां पर दे रहा हूं. ओके, और उसके थ्रू यहां पर मैंने अपना नंबर दिया है, आप यदि देख सकते हैं नंबर दिया है, उसको डबल कोटेशन में डाल दिया है. अब मैं इसको सर्च कर रहा हूं. ओके, जैसे ही मैं सर्च करता हूं आपको समझ में आएगा कि 51 प्लेसेस के ऊपर ये नंबर मौजूद है. यानी क्या? अभी यदि ये मेरा नंबर चेंज हो चुका है, हम लोग फ्रीक्वेंटली मोबाइल नंबर चेंज करते रहते हैं, बराबर है? तो आप लोग भी यदि चेंज करते हैं तो आप लोगों ने क्या करना चाहिए? जहां जहां पे भी आपका मोबाइल नंबर, पुराना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा, कहां पर रजिस्टर्ड है, ये आप इजीली इसके थ्रू देख सकते हैं.
कई बार आप लोगों ने बहुत सारे गलत जगह पे भी सब्सक्रिप्शन किया हुआ रहता है आपके मोबाइल के थ्रू, आपको पता नहीं रहता है, तो आप लोग उसको सर्च करने के लिए ये फैसिलिटी यूज कर सकते हैं। आपका मोबाइल नंबर डायरेक्टली आप लोग डाल दीजिए, आपको समझ में आएगा कि आपका मोबाइल नंबर कितने साइट्स के ऊपर क्या हो चुका है, रजिस्टर हो चुका है। वो सारे साइट से आप लोग क्या कर सकते हैं, अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि snjb.org जो अपना वेबसाइट है कॉलेज का, उस पे मेरा ये नंबर मौजूद है। ओके, अब जब ये मेरा नंबर मौजूद है, ये मेरा पुराना नंबर है, तो मैंने क्या करना चाहिए, वेबसाइट इंचार्ज जो भी है उनको इन्फॉर्म करना चाहिए कि ये मेरा नया नंबर अभी जो है इसके जगह पे आप अपडेट कर दो। अब वेबसाइट इंचार्ज के लिए भी कितना बड़ा चैलेंज है, सर कहां पर है आपका नंबर, आप मुझे बता दीजिए। तो मेरे लिए कितना सिंपल है, सिंपली आप लोगों को सर्च करना रहेगा। ओके, लेकिन मुझे अपने ही वेबसाइट पे चाहिए, मुझे कहां पर चाहिए, अपने वेबसाइट पर चाहिए। तो मैं यहां पर प्लस का इस्तेमाल करता हूं। प्लस यानी क्या, इसके साथ आपको और क्या चाहिए, कॉन्कैटनेट का काम ये करेगा। कौन से साइट के ऊपर देखना है, तो साइट कोलन ये वाला जो यहां पर ऑपरेंड मैंने दिया है, साइट कोलन का इस्तेमाल जब भी आप करोगे, आप साइट का नाम डायरेक्टली यहां पर दे सकते हैं। तो आप यहां पर देखोगे रिजल्ट में इंडिया मार्ट आ रहा है, snjb.or आ रहा है, org आ रहा है, गोदावरी कॉलेज के यहाँ पे मेरा नंबर दिखाई दे रहा है, और बहुत सारे हु कॉल मी में दिखाई दे रहा है। ऐसे बहुत जगह पे मेरा नंबर दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे कहां पर चेक करना है, snjb.org के ऊपर कहां पर ये अवेलेबल है, कौन सा नंबर, 98 वाला नंबर। तो मैं वो नंबर वहां पर दे रहा हूं, प्लस साइन दे रहा हूं, और साइट के ऊपर यहां पर मैं मेंशन करूंगा snjb.org, यानी मैं कौन से साइट पे इसको ढूंढना चाह रहा हूं, अपने snjb की साइट जो है वहां पर मैं सर्च करना चाहता हूं। मैं इसको एंटर दे देता हूं। जैसे मैं एंटर देता हूं, आपको पहले समझ में आएगा कि पहले वाले रिजल्ट्स जो थे 49 थे, अब वो रिजल्ट रिड्यूस हो गए, 1 के ऊपर आ गया। मैं सिंपली ये वाला लिंक ओपन करके ये लिंक मेरे वेबसाइट इंचार्ज को दे सकता हूं कि यहां पर मेरा नंबर आया है। आप देखिए बेहतर चीज क्या है, मैंने snjb.org पे मैं गया ही नहीं, वहां पे मैंने ढूंढा ही नहीं, मैंने डायरेक्टली कहां पर, किसके थ्रू उसको ढूंढा है, गूगल सर्च के थ्रू। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हम लोगों ने 3 ऑपरेटर का स्टडी किया है। कौन से 3 ऑपरेटर का स्टडी किया है, एक तो डबल कोटेशन का यूज हम लोगों ने किया, दूसरा हम लोगों ने प्लस का यूज किया, और तीसरा हम लोगों ने यहां पर साइट का यूज किया। साइट का यूज जब भी हम लोग कर रहे हैं, साइट और कोलन आपको देना रहेगा। इससे क्या होगा, आप पर्टिकुलर साइट के ऊपर आपको जो भी खोजना है, जो भी सर्च करना है, आप इजीली क्या कर पाओगे, सर्च कर पाओगे। यदि आप साइट का नाम नहीं दोगे, तो जितने भी साइट के ऊपर वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी, वो सारी आपके सामने क्या होगी, यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर साइट का इस्तेमाल किया है। ऐसे बहुत सारे ऑपरेटर्स है, जिसमें वन ऑफ द फेमस ऑपरेटर जो भी है, दैट इज व्हाट, फाइल टाइप। तो मुझे ये देखना है कि यहां पर यदि आप कई बार सर्च करने जाते हैं, फॉर एग्जांपल यदि मैं ऑपरेटिंग सिस्टम या रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में ढूंढना चाहता हूं, तो मैं यहां पे दूंगा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, और मुझे क्या चाहिए, प्रेजेंटेशन चाहिए। ओके, या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन चाहिए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। मान लो ऐसा यदि मैंने दिया, ये वाला वर्ड यदि मैंने सर्चिंग के लिए दिया, मैं एंटर कर देता हूं। कई बार आप लोग, आपका जो भी सेमिनार टॉपिक होता है या प्रोजेक्ट टॉपिक होता है, हाउ यू सर्च ऑन गूगल, यू डायरेक्टली सर्च ऑन व्हाट, कि वेदर पीपीटी इज अवेलेबल फॉर माय टॉपिक और नॉट। आप डायरेक्टली उसको सर्च करने जाते हैं। सेम आई एम आल्सो डूइंग दैट। देखिए, लेकिन जैसे ही मैं इसको सर्च करता हूं, सर्च करते ही यहां पर आप लोगों को समझ में आएगा कि कितने सारे रिजल्ट्स मेरे सामने आए हैं। ओके, यदि इस नंबर को मैं देखने जाऊं तो शायद ये नंबर काफी बड़ा है, मुझे शायद पढ़ते भी नहीं आएगा। इतने रिजल्ट्स आए हैं, और इतने यदि पीपीटीज में देखूंगा तो सही पीपीटी कौन सी है ये ढूंढना मुश्किल होगा। इससे तो बेहतर है इतने सारे पीपीटीज ओपन कर करके देखने के बजाय मैं क्या करूं, अपना खुद का पीपीटी बना लूं। लेकिन यदि आपको सही पीपीटी चाहिए रहेगी, तो आपको क्या करते आना चाहिए, इसको सिंपली आप क्या कर दीजिए, इसको मॉडिफाई कर देते हैं। मैं इसको क्या कर रहा हूं, अभी डबल कोटेशन एंटर कर रहा हूं, प्लस का साइन एंटर कर रहा हूं, और मुझे फाइल टाइप कौन सा चाहिए है, मुझे फाइल टाइप चाहिए है पीपीटी। ओके, या पीपीटीएक्स, दोनों भी ये क्या कर लेगा, यहाँ पे सर्च कर लेगा। तो मैंने इसको थोड़ा चेंज किया है। आपने देखा रहेगा कि पहले मैंने जिस तरीके से हम लोग सर्च करते हैं, उस तरीके से सर्च के रिजल्ट्स कितने आते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए इतने सर्च के रिजल्ट्स आते हैं। यदि ये आपको रिड्यूस करना है तो सर्च प्रॉपर्ली हम लोगों ने करना चाहिए। तो मैंने अभी क्या किया, डबल कोटेशन में रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम दिया, जो मुझे एक्चुअली एज इट इज ढूंढना था, और प्लस करके
फाइल टाइप मैंने दिया है कोलन पीपीटी, यानी मैं सिर्फ और सिर्फ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इसके लेने चाहता हूं, मुझे पीडीएफ नहीं चाहिए, मुझे डायरेक्टली पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन चाहिए। जैसे ही मैं इसको अभी क्या करूंगा, एंटर करूंगा, आप देखिए सर्च रिजल्ट जो है वो कितने हो गए, दैट इज ओनली 61 नाउ। अर्लियर रिजल्ट्स वेर इन क्रोर्स एंड नाउ इट इज इन व्हाट 61। आप देखिए क्रोर्स वाले रिजल्ट्स आप डायरेक्टली रिड्यूस करके 61 के ऊपर ला सकते हैं, और आप समझ सकते हैं कि इतना इफेक्टिव सर्च यदि आप लोग करोगे तो आपका अच्छा खासा टाइम जो है वो बच सकता है। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, टाइम इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग। हम लोगों ने प्रीवियस एक सेशन में देखा था टाइम मैनेजमेंट, टाइम इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो वो बचाने के लिए हम लोग काफी अच्छे चीजों का यहाँ पर सिंपली थोड़े से ट्रिक्स हम लोगों को यूज करने हैं। देखिए पूरा स्ट्रिंग की जगह पे मैं स्ट्रिंग दे रहा हूं, लेकिन डबल कोटेशन का इस्तेमाल करता हूं, प्लस का इस्तेमाल करता हूं, फाइल टाइप का इस्तेमाल करता हूं, तो मेरे रिजल्ट जो है जो क्रोर्स में आ रहे थे अब वो किस में आ चुके हैं, दैट इज नाउ 2-digit number. So my dear students, won't you think so it is effective? It's quite effective. तो ये वाला जो मेरा पीपीटी है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, इसमें मैंने काफी ऑपरेटर्स का लिस्ट आप लोगों को यहाँ पर दिया है। आप सिंपली इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं, या फिर ये वाले जो भी है आप मेरे ब्लॉग के ऊपर जाओगे, एक्सपर्ट टॉक के ऊपर जाओगे, तो आपको ये वाला पीपीटी जो भी है वो मिल जाएगा, आप लोग डाउनलोड करके रख सकते हैं। और बहुत सारे बाकी बचे हुए और बहुत सारे ऑपरेटर्स है जो मैंने फिलहाल यहाँ पर नहीं लिए हैं, उसका आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं सिंपली ये आई ओपनिंग सेशन ले रहा हूं जहां से आपको समझ में आएगा कि गूगल सर्च का पावर यदि हम लोग गूगल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं तो और भी काफी बेहतर हो सकता है। सो ये लॉजिक था आपको ये गूगल सर्च फिर से एक बार दिखाने का। सो लेट्स लुक एट द नेक्स्ट पार्ट। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या कवर किया है, गूगल फैमिली क्या है वो हम लोगों ने कवर किया, गूगल सर्च के बारे में हम लोगों ने कवर किया। अब हम लोग जीमेल के ऊपर जाएंगे। इसके पहले यदि आपके कुछ क्वेश्चंस है तो आप लोग आपके चैट विंडो के ऊपर आप डाल सकते हैं। यदि कोई क्वेश्चंस नहीं है, यदि आपको ये क्लियर समझ में आया है, तो हम लोग नए जो फीचर्स है जीमेल के उसके ऊपर हम लोग स्विच ओवर हो सकते हैं। So my dear students, if you have any doubt, you can ask on chat window. Don't unmute. You can simply write on what chat window. Otherwise, we'll switch to what? Gmail. ये गूगल सर्च इतना ही था जो मुझे आप लोगों को बताना था। इसके आगे और बहुत सारे फीचर्स इसमें हैं, बहुत सारे ऑपरेटर्स इसमें हैं। आप यदि सारे गूगल के ऑपरेटर कैसे सर्च करोगे, गूगल के ऑपरेटर ही आपको चाहिए, तो क्या सर्च में डालोगे आप, यहाँ पर आपको सिंपली देना रहेगा गूगल सर्च ऑपरेटर, ये आप डाल दीजिए। ओके, एंटर कीजिए। आपको ये फर्स्ट वाला जो लिंक आएगा उसको आप ओपन कर दीजिए। जैसे ही आप उसको ओपन करोगे आपको बहुत सारे ऑपरेटर्स यहां पर मिल जाएंगे। There are so many operators, यहाँ पर टोटल 42 ऑपरेटर्स इन्होंने दिए हैं। ये सारे ऑपरेटर्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। इसमें से थोड़े बहुत ऑपरेटर्स का आज मैंने क्या किया है, आपको इस्तेमाल करके दिखाया है। ये आई ओपनिंग में आपको करना चाह रहा था। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे फाइल टाइप का हम लोगों ने इस्तेमाल किया है, साइट का इस्तेमाल किया है, ऐसे और बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं जो आप लोग क्या कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो आई होप आप लोग इसको इजीली क्या कर लोगे, एक्सप्लोर करोगे। इसको एक्सप्लोर करने के लिए सर्च स्ट्रिंग क्या देनी जरूरी थी आप लोगों को, जो भी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दिखाया है कि किस तरीके से इसको आप लोग क्या कर पाओगे, सर्च कर पाओगे। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स व्हाट द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ व्हाट जीमेल। नाउ विद दिस जीमेल हम सभी लोग क्या कर रहे हैं, जीमेल यूज कर रहे हैं। आप सभी लोगों के पास, आपको ये पता होगा जीमेल के बारे में जनरल जानकारी आप सभी लोगों को होगी कि जीमेल हम लोगों को 15 GB का स्पेस जो भी है वो देता है। काफी अच्छा ईमेल सर्विस प्रोवाइडर ये है, लेकिन इसमें भी बहुत सारे हिडन फीचर्स है जिसका हम लोग क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेरी फर्स्ट थिंग इज व्हाट अबाउट जीमेल इज इट्स सिग्नेचर। तो जो लोग हैंड्स ऑन सेशन इसको करना चाह रहे हैं, आप मोबाइल के थ्रू भी इसको कर सकते हैं, या फिर आप लोग आपके लैपटॉप के द्वारा भी इसको कर सकते हैं। आपको करना क्या होगा, आपका जीमेल ओपन करके रखना है। जैसे ही आप जीमेल ओपन करोगे तो कुछ चीजें आप लोगों को मैं यहाँ पे पहले दिखा रहा हूँ। तो मेरा तरीका जो है वो बहुत सिंपल है। मैं आपको सबसे पहले आई एम शोइंग एवरीथिंग ऑन व्हाट प्रेजेंटेशन। ओके, प्रेजेंटेशन के बाद लाइव हैंड्स ऑन सेशन भी मैं आपका लूंगा, जिससे आप लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप इजीली ये सारे फीचर्स को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि क्या होता है जीमेल का सिग्नेचर। एंड डियर स्टूडेंट्स, आई नो दैट आप में से जिन लोगों को जीमेल का सिग्नेचर बहुत अच्छे से सजाते आता होगा, उसके बावजूद भी आज आपको मैं कुछ ना कुछ नया इसमें देने की कोशिश करूंगा। सो लेट्स फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, जीमेल सिग्नेचर। अब जीमेल सिग्नेचर यानी क्या, जब भी हम लोग कंपोज मेल के ऊपर जाते हैं, हम लोगों ने जीमेल के ऊपर लॉगिन किया है, जीमेल के ऊपर लॉगिन करने के बाद
कंपोज मेल के ऊपर जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये ऐसा एक विंडो जो भी है वो ओपन होगा, और इस विंडो के ऊपर आप लोगों को दिखाई देगा कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली कुछ चीजें जो भी वो आई है, यानी आप लोगों को समझ में आएगा कि क्या आया है। तो ये वाला सिग्नेचर ऑटोमेटिकली आया है, विथ रिगार्ड्स महेश आर संघवी, एमई, पीएचडी, सीएससी, प्रोफेसर एंड हेड एंड ब्ला ब्ला ब्ला। ये पूरा सिग्नेचर मैंने यहाँ पे पहले से ही क्या करके रखा हुआ है, ड्रॉ करके रखा है। अब इसमें नया क्या है, ये तो सभी लोग करते हैं, राइट। आप सभी लोगों ने आपका सिग्नेचर क्या किया रहेगा, एस्टेब्लिश किया रहेगा। जिन लोगों ने सिग्नेचर अभी तक एस्टेब्लिश नहीं किया है, मैं यहाँ पे वो भी दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप आपका सिग्नेचर एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं कि सिग्नेचर एग्जैक्टली क्या है। तो सिग्नेचर यानी क्या, हम लोग जब भी किसी को ईमेल लिखते हैं तो ईमेल लिखने के बाद हम लोगों को क्या लिखना पड़ता है, विद रिगार्ड्स हमारा नाम लिखना पड़ता है। यदि बार बार ये चीजें अपने लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सिग्नेचर सेटअप करके रख सकते हैं। यहाँ पर सिग्नेचर का मीनिंग होगा आपके बारे में शॉर्ट इंफॉर्मेशन जो भी है वो यहाँ पे आप लोगों को देते आना चाहिए। तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व कीजिए, ये मेरा शॉर्ट सिग्नेचर मैंने यहाँ पर देने की कोशिश की है, और ये सिग्नेचर मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, बराबर है। लेकिन यहाँ पर यदि आप लोग देखोगे तो आपको एक पेन का सिंबल दिखता है, दिस इज समथिंग न्यू नाउ। ओके, आप यदि देखोगे आपका जीमेल जब भी आप ओपन करोगे तो आपको जब भी आप कंपोज बॉक्स में जाते हैं तो यहाँ पर एक पेन का सिंबल दिखाई देता है। वो पेन का सिंबल आपको क्या बोलता है, आपके मल्टीपल सिग्नेचर्स आपको यूज करते आ सकते हैं। तो मल्टीपल सिग्नेचर्स यदि आपको यूज करने हैं, यानी क्या, एक से ज्यादा सिग्नेचर। अब एक से ज्यादा सिग्नेचर की जरूरत कब पड़ती है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि उसकी जरूरत कब पड़ेगी। ओके, तो फिलहाल आपको ये समझना है कि एक से ज्यादा सिग्नेचर यदि हम लोगों को चाहिए है, हम लोगों ने यदि उसको सेट करके रखे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस पेन के ऊपर क्लिक करना है। इस पेन के ऊपर क्लिक करने के बाद ये वाला एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जो डायलॉग बॉक्स में क्या दिए हैं, मेरे मल्टीपल सिग्नेचर्स जो भी वो दिए हैं। तो मैं लाइव करके आपको ये दिखाऊंगा तो आपको और भी बेहतर समझ में आएगा कि इसका क्या यूज है। लेकिन सिग्नेचर पे यदि जाना है या मल्टीपल, किसी ने एक भी सिग्नेचर ऐड नहीं किया है तो उसका भी प्रोसीजर यही है। किसी ने एक सिग्नेचर ऐड की होगी तो एक से ज्यादा सिग्नेचर कैसे ऐड करना है उसका भी मैं आपको यहाँ पर तरीका बता रहा हूं। ओके, तो क्या करना पड़ेगा आपको, उसके लिए आपको सबसे पहले जीमेल ओपन करना है। जीमेल में ओपन करने के बाद आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको सेटिंग के बटन को क्लिक करना है। वहां पर जाओगे तो आपके सामने ऐसा एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ये डायलॉग बॉक्स जो भी है ये सारा सेटिंग है, जीमेल के सारे सेटिंग्स हम लोग यहीं से करते हैं। ओके, तो कई बार अभी हमारे यहाँ पे ये जो भी सेशन हम लोग ले रहे हैं, इस सेशन में हम लोगों को देखना है कि सारे सेटिंग्स हम लोग कहाँ से करने वाले हैं, तो उसका पाथ फिक्स है। तो यहाँ पर भी क्या करना है, आपको यहाँ पर एक जनरल टैब जो भी है बाय डिफॉल्ट ओपन होता है, वहां पे आपको जाना है। वहां पर जैसे ही आप जाओगे नीचे, जैसे ही उसको स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पर सिग्नेचर नाम का एक नाम दिखाई देगा, और वहां पे आपको उस सिग्नेचर पे आप लोगों को जाना है। जैसे ही आप सिग्नेचर के ऊपर जाओगे तो आपका काम क्या रहेगा, क्रिएट न्यू सिग्नेचर। जिन लोगों ने अभी तक एक बार भी सिग्नेचर क्रिएट नहीं किया है, यहां पर उनका लिस्ट जो भी है, नाम कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ पे सारा ब्लैंक आएगा और आप नए से सिग्नेचर क्रिएट कर सकते हैं। आपको क्या करना रहेगा, क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको क्या करते आएगा, यहाँ पर साइड में, उसके साइड में जहां पे मेरा माउस पॉइंटर है, वहां पर आप लोग आपका सिग्नेचर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं जो आपको चाहिए। सो यू कैन टाइप योर सिग्नेचर, और इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, कितने भी सिग्नेचर्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो मैं आपको एक डेमो देने जा रहा हूँ, जो मैं आपको लाइव डेमो दूंगा, इसमें हम लोगों को समझ में आएगा कि ये हम लोग किस तरीके से कर रहे हैं। सो फोकस करें प्रॉपर्ली, और जो लोग हैंड्स ऑन करना चाहते हैं वो मेरे साथ में हैंड्स ऑन भी कर सकते हैं। तो उसके लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, अपने जीमेल में जाना पड़ेगा। ओके, इस जीमेल में जाके यहाँ पर आप देखो HOD.com का मैंने ईमेल आईडी ओपन किया हुआ है। मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, सेटिंग्स में जाना है। ओके, सबसे पहले तो मैं आपको कंपोज के ऊपर क्लिक करके दिखा दूं कि यहाँ पर क्या आता है, ये वाला जो भी डिटेल है ये आ रहा है। ओके, अब कई बार आईटी के जो स्टूडेंट्स है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो स्टूडेंट्स है, वो बोलेंगे कि सर हमेशा बाय डिफॉल्ट HOD कंप्यूटर ही दिखाते हैं, HOD IT भी यहाँ पर आना चाहिए। तो HOD IT यदि मुझे यहाँ पर लाना है, आप सभी लोगों को पता है कि मेरे मल्टीपल रोल्स है, मैं फिलहाल 2 रोल पर काम कर रहा हूँ। एक है HOD कंप्यूटर और दूसरा मेरा क्या है, HOD IT। तो यहाँ पर सिग्नेचर में मुझे क्या करते आना चाहिए, चेंज करते आना चाहिए। तो मैं किस तरीके से इसको करूंगा, तो ये सिग्नेचर में चेंज करने के लिए आपको करना क्या है, आपको जाना होगा सेटिंग्स में। ओके, सेटिंग्स पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, यहाँ पे सी ऑल सेटिंग के ऊपर आपको क्लिक करना है। मैं उसको क्लिक कर रहा हूं। जैसे ही मैं उसको क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मेरे सामने जनरल टैब ओपन हुआ है। अब देखिए ये वाला जनरल टैब यहाँ पर ओपन हुआ है। इस जनरल टैब को जैसे ही मैं ओपन कर रहा हूं, मुझे कहाँ जाना रहेगा, डाउन। मुझे इसको क्या करना है, सिंपली स्क्रॉल डाउन करना है। मैं जैसे ही इसको स्क्रॉल डाउन करूंगा
ओके, तो यहाँ पर मुझे सिग्नेचर जो भी है वो दिखाई देगी। ये सिग्नेचर जो भी है यहाँ पर फिलहाल एक ही सिग्नेचर मैंने ऐड किया हुआ है और ये वाला सिग्नेचर आपको दिखाई देगा। तो ये पूरा सिग्नेचर मैं फिलहाल यहाँ से क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा सिग्नेचर सेम ही है। चेंज क्या होगा, एचओडी कंप्यूटर इंजीनियरिंग के जगह पे एचओडी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मुझे डालना है। तो मैं इसको रिनेम कर देता हूँ और इस सिग्नेचर का नाम फिलहाल मैं कर देता हूँ कि एचओडी कॉम का ये सिग्नेचर है। इसको मैंने डन कर दिया, जो मेरा पहले पुराना वाला सिग्नेचर था। अब मैं नया सिग्नेचर ऐड करना चाहता हूं तो मुझे क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। तो मैं क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक कर रहा हूं। जैसे मैं क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक कर रहा हूं, ये मुझे पूछ रहा है सिग्नेचर का नाम क्या रखना है। तो मुझे यहाँ पर सिग्नेचर का नाम क्या रखना है, एचओडी आईटी, ये सिग्नेचर का नाम रखना है। तो मैं एचओडी आईटी इस तरीके से इसको बोल रहा हूं और क्रिएट बोल रहा हूं। जैसे मैं क्रिएट बोलूंगा तो मेरे पास यहाँ पर सिग्नेचर ऐड करने के लिए ऑप्शन आया है। मैं इसको कंट्रोल वी बोल देता हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी मेरा सिग्नेचर कॉपी किया था। मैंने इसको कंट्रोल वी किया और चेंज कहां पर करना है मुझे, सिंपली यहां पर जहां पे मैंने डिपार्टमेंट ऑफ हेड, प्रोफेसर एंड हेड, डिपार्टमेंट ऑफ क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग लिखा है, वहां पर मुझे क्या करना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऐसे करना है। बस इतना ही काम मुझे करना रहेगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये मैंने कर दिया। इस तरीके से आप आपके मल्टीपल सिग्नेचर्स क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, सिग्नेचर ऐड करने के लिए आप यहाँ पर उसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। आपको यदि उसको छोटा बड़ा करना है, साइज आप चेंज कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं। इवन आप लिंक्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं, इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर मैंने ट्विटर का, फेसबुक का, लिंक्डइन का, गूगल का, एसएनजेबी का, ये सारे क्या किए हैं, लिंक जो भी है वो बनाए हैं। तो लिंक कैसे बनाना है, तो आप ये सारे इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं और इजीली आप लोग आपके लिंक्स भी इसके थ्रू बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर देखिए मैंने अपने ब्लॉग का भी लिंक यहाँ पर दिया है और वो भी मैंने क्या कर दिया है, बना के रखा है। तो इस तरीके से आप सारे लिंक्स या आपका पूरा सिग्नेचर यहाँ पर बना सकते हैं। ये सिग्नेचर पूरा बनाने के बाद आपका काम क्या रहेगा, आपको एट लास्ट फिर से पूरा नीचे आना रहेगा। ओके, आपको स्क्रॉल डाउन करना है एंड आफ्टर स्क्रॉल डाउन यू हैव टू क्लिक ऑन व्हाट, सेव चेंजेस। सो क्लिक ऑन सेव चेंजेस। वंस यू क्लिक ऑन सेव चेंजेस, ऑटोमेटिकली ये वाला सिग्नेचर जो भी है वो क्रिएट होगा। अब जैसे ही मैं कंपोज के ऊपर जाता हूं, अर्ली आप देखिए बाय डिफॉल्ट यहाँ पर क्या दिख रहा है, एचओडी कंप्यूटर का सिग्नेचर जो भी वो दिखाई दे रहा है। लेकिन मुझे एचओडी आईटी का सिग्नेचर चाहिए। मैं आईटी के बच्चों को कुछ लिखना चाह रहा हूं। तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे पास दो तरीके हैं। एक तो यहाँ पर हमेशा मुझे क्या करना चाहिए, एचओडी आईटी जो भी है मींस यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एक तो ऐसा मुझे चेंज करना पड़ेगा, या फिर दूसरा तरीका क्या है, मैं यहाँ से पेन का सिंबल आपको दिखाई देगा। देखिए आपको ये वाला पेन का सिंबल दिखाई दे रहा है। इस पेन के सिंबल के ऊपर क्लिक कीजिए तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, यहाँ पे जो नया सिग्नेचर मैंने क्रिएट किया था एचओडी आईटी का, वो नाम आ चुका है, सिंपली सिलेक्ट दैट। उसको जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे, आप देखिए यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो भी है वो हो चुका है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप कई बार डिफरेंट रोल्स प्ले करते हैं। यदि आप कोऑर्डिनेटर का काम कर रहे हैं, जैसे आईआईटी अपना एक क्या है, एसोसिएशन है, स्पेस ये अपना एसोसिएशन है, सीएसआई अपना क्या है, एक चैप्टर है। यदि आप ये कोई भी चैप्टर्स के ऊपर यदि कोई बॉडी में काम कर रहे हैं, यानी यदि आप में से कोई सेक्रेटरी है या ट्रेजरर है या प्रेसिडेंट है या वाइस प्रेसिडेंट है, तो जो भी आप सीएसआई से रिलेटेड मेल लिखोगे या स्पेस से रिलेटेड मेल लिखोगे या आईआईटी से रिलेटेड मेल लिखोगे, तो आपको क्या करते आना चाहिए, आपका सिग्नेचर जो है वो चेंज करते आना चाहिए। डिफॉल्ट सिग्नेचर आपका क्या रहेगा, आपका नाम, देन स्टूडेंट ऑफ व्हाट, बी कंप्यूटर और बीआईटी और ऐसी कंप्यूटर और ऐसी आईटी, इस तरीके से आप लोगों को क्या करना रहेगा, यहाँ पे मेंशन करना रहेगा। बराबर है, तो वो सिग्नेचर आपका बाय डिफॉल्ट रहेगा। लेकिन यदि आप कोई रोल के ऊपर काम कर रहे हैं, रोल यानी क्या, आप यदि सेक्रेटरी का काम कर रहे हैं सीएसआई चैप्टर के ऊपर, तो आपको सेक्रेटरी सीएसआई चैप्टर का एक सिग्नेचर बना के रखना होगा। और आप जब भी उससे रिलेटेड कुछ लिख रहे हो तो आपको वो वाला क्या करते आएगा, सिलेक्ट करते आएगा। तो इस तरीके से आप लोग काम कर सकते हैं। दूसरा, आप में से यदि कोई अपना खुद का बिजनेस चला रहा है, उसका बिजनेस का फर्म होगा और एक ही अकाउंट से यदि आपको वो हैंडल करना है, आप बिजनेस अकाउंट से रिलेटेड फर्म बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका नाम, आप यदि उस बिजनेस इसमें मैनेजिंग डायरेक्टर हो, ओनर हो, वो सारा इंफॉर्मेशन आप वहां पर डाल दीजिए और आप इस तरीके से सिग्नेचर्स को क्या कर सकते हैं, बना के उसको सिंपली क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये है आपका मल्टीपल सिग्नेचर। मल्टीपल सिग्नेचर को यूज करने के लिए आपको सिंपली पेन के ऊपर क्लिक करना रहेगा और इसके थ्रू आप लोग क्या कर सकते हैं, सिग्नेचर यूज कर सकते हैं। मैं चैट विंडो में देखता हूं किसी ने कुछ क्वेश्चन किया हुआ है, सो आई जस्ट चेक इट आउट। ओके, और मैं उसका जवाब देने की कोशिश करता हूं।
यस डियर, आनंद मुत्ता ने मुझे सजेशन दिया है कि आप आपका कॉलेज का लोगो जो भी है वो इसमें क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, उसको लिंक देंगे तो लोग वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आनंद, हम लोग ये सब कर सकते हैं। मैं इमेज यहाँ पर जो भी आपने सजेशन दिया है तो मैं जरूर ऐड करूंगा, लेकिन ये स्टूडेंट्स जब भी आप इमेजेस ऐड करते हैं तो आप याद रखना कि थोड़ा लोड करने के लिए समय लगेगा। टेक्स्ट कंपैरेटिवली इमेज के कंपैरिजन में टेक्स्ट फास्ट फटाक से क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन इमेज आने के लिए समय लगता है, इसलिए अभी तक मैंने इमेज नहीं रखा था। लेकिन जो कि आनंद ने मुझे सजेशन दिया है तो मैं 107% इमेज जो भी है कुछ दिन के लिए तो भी पक्का रखूंगा। थैंक्स फॉर योर सजेशन। ओके, तो होप आप ये सभी लोगों को ये सिग्नेचर, मल्टीपल सिग्नेचर जो भी है, इसका यूज कैसे करना है ये समझ में आया रहेगा। यदि आपको ये समझ में आया है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं कि मेल को स्नूज कैसे करना है। अब मेल स्नूजिंग यानी क्या? डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत अच्छा फीचर है। जब भी आप कंपनी में काम करोगे या फिलहाल आप कॉलेज में काम कर रहे हैं तो कई बार हमारे ईमेल्स आपको आते हैं और वो ईमेल आने के बाद हम लोगों को स्ट्रेस आता है कि ये ईमेल आने के बाद हम लोगों ने अभी क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, तो काफी चीजें सिंपल है। क्या करने के लिए बहुत सारी चीजें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए कि हम लोग क्या करेंगे। कुछ ईमेल्स जो मुझे आए हैं वो मैं क्या करना चाहता हूँ, सिंपली हटा देना चाहता हूँ। यदि मुझे उसको हटा देना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स, उसको यदि मुझे हटाना है तो मुझे वो ईमेल जो भी मेरे मेल्स है उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, साइड में करना पड़ेगा। उसको साइड में करना है, थोड़ी देर के बाद या एक दिन के बाद वो ईमेल्स जो भी वो आनी चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको ईमेल को स्नूज जो भी है वो करना पड़ेगा। स्नूज ऑप्शन एग्जैक्टली क्या है ये आपको मैं जस्ट एक आइडिया देता हूं प्रेजेंटेशन के थ्रू, और फिर हम लोग हैंड्स ऑन सेशन देखेंगे। सो ईमेल स्नूज यानी क्या, यहां पर यदि आप लोग ऑब्जर्व करोगे, जब भी आपको ईमेल्स आते हैं आपके इनबॉक्स में, इस ईमेल के यहां पर आपको कुछ आइकॉन्स आते हैं। ओके, आपको राइट हैंड साइड पे देखना है, कुछ आइकॉन आपको आते हैं। एक आइकॉन आता है डाउनलोड करने का, दूसरा आता है डिलीट करने का, तीसरा आता है अनरीड करने का, चौथा आता है एक आपको वॉच का सिंबल दिखाई देगा, एक घड़ी का सिंबल आप लोगों को दिखाई देगा। दैट इंडिकेट्स दैट कि वो स्नूजिंग के लिए काम आता है। अब स्नूज यानी एग्जैक्टली क्या, तो उसके ऊपर जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स जो भी वो ओपन होगा। ओके, उसके पहले आपको समझना ये जरूरी है कि स्नूज किए हुए ईमेल कहाँ जाएंगे। तो स्नूज किए हुए ईमेल एक सेपरेट इनबॉक्स बनता है स्नूज का, और वहां पर जाके वो क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। तो किस तरीके से करना है, आपको स्नूज के आइकॉन के ऊपर क्लिक करना है। वो आइकॉन जो भी एक वॉच का सिंबल आपको दिखाई देगा, जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स जो भी है वो आएगा। इस डायलॉग बॉक्स के ऊपर आप लोग क्या कर सकते हैं, यदि आप बोल देते हैं टुमारो 8 AM यानी कल 8 बजे ये मैसेज आपको दिखना चाहिए, अभी आपके इनबॉक्स में से वो चला जाना चाहिए और कल सुबह 8 बजे ये मैसेज आपको दिखाई देना चाहिए। ऐसा क्यों करना जरूरी है, कई बार बहुत सारे स्टूडेंट्स को ईमेल जब भी देखते हैं तो स्ट्रेस आता है। यदि आपको स्ट्रेस आ रहा है, आप क्या कर सकते हैं, उस ईमेल को सिंपली डिले करके रख सकते हैं, वो आपके पास आया हुआ रहेगा, सिर्फ इनबॉक्स से निकल के दूसरे इनबॉक्स में यानी स्नूज वाले इनबॉक्स में चला जाएगा, और ऑटोमेटिकली आपने जिस टाइम पर बोला है उस टाइम पे आपके सामने फिर से इनबॉक्स में आएगा। तो ये है स्नूज का ऑप्शन। तो किस तरीके से स्नूज करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूं, आपको जस्ट कुछ आइडिया देता हूं। अब आप देखिए कि यहाँ पर कुछ मेल्स मुझे आए हुए हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल ये एस्टेब्लिशमेंट का एक मेल आया हुआ है। ये मेल जो भी आया है मैं नहीं देखना चाहता हूँ फिलहाल, ये मेरे इनबॉक्स से हट जाना चाहिए। तो मुझे इसको क्या क्लिक करना है, स्नूज के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं स्नूज के ऊपर क्लिक करता हूँ, इस वॉच के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये मुझे पूछ रहा है कब आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर एक बाय डिफॉल्ट जो भी है टुमारो 8 AM, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये कल 8 बजे मुझे दिखना चाहिए, तो मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए वो मेल यहां से जा चुका है। ओके, और वो कहा जा चुका है, मेरे स्नूज में जा चुका है। मुझे यहाँ पर मेरे इनबॉक्स में वो नहीं दिखाई देगा, वो मुझे कहां पर दिखाई देगा, स्नूज वाले बॉक्स में। मैं इसको क्लिक करता हूँ स्नूज के ऊपर, देखिए स्नूज पे ये मेल मुझे दिखाई देगा, और ऑटोमेटिकली ये वाला मेल जो भी है ये स्नूज से निकल के इनबॉक्स में आएगा कल सुबह 8 बजे शार्प। तो इस तरीके से ये काम होता है। तो कई बार जिन लोगों को स्ट्रेस आता है कि काफी चीजें आप लोग देखते हैं, गूगल क्लासरूम के काफी चीजें आपको समझ में आती है, गूगल क्लासरूम का काफी डेटा आपको आता है, असाइनमेंट सबमिट करना है, अलाना करना है, फलाना करना है, आजकल ईमेल के थ्रू आपको स्ट्रेस जनरेट होता है। यदि आपको ईमेल के थ्रू स्ट्रेस जनरेट हो रहा है और आप चाहते हैं कि आज मैं स्टडी के ऊपर फोकस करना चाहता हूं, ये सारे ईमेल के जवाब मैं कल दूंगा, तो आप उस पर्टिकुलर केस में यहाँ पर स्नूज का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे यूज करना है, देखिए ये जो भी ऑनलाइन कोर्स का जो मेल आया है, ये मुझे लगता है कि मुझे आज नहीं देखना है, कल देखना है। मैं इस मेल को सिंपली यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, स्नूज के ऊपर लास्ट में एक आइकॉन दिया है उसके ऊपर क्लिक करता हूँ, और उसको मैं बोल देता हूँ कि ये मुझे डायरेक्टली नेक्स्ट वीक के मंडे को दिखना चाहिए। तो मैं इसको क्लिक कर देता हूँ नेक्स्ट वीक के मंडे को। देखिए वो मेल यहाँ से, ऑनलाइन वाला मेल जो भी वो यहाँ से जा चुका है, मेरे इनबॉक्स में से हट चुका है, और वो कहाँ गया है, स्नूज वाले
तो वहां पर आप लोगों को दिखाई देगा। तो यहाँ पर ये आया है और एग्जैक्टली जिस डेट और टाइम पे मैंने उसको बोला है ऑटोमेटिकली आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखिए ये कब आने वाला है, जुलाई 12 को मेरे सामने आएगा, और ये दूसरा मेल जो भी है वो कब कब आएगा, जुलाई 13 को। तो ऑटोमेटिकली जुलाई 12 को 8 बजे फर्स्ट मेल मेरे सामने आएगा इनबॉक्स में, और जुलाई 13 को सेकंड मेल मेरे सामने आएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ईमेल स्नूजिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। काफी अच्छा फीचर ये जीमेल ने हम लोगों को क्या किया है, प्रोवाइड किया है। ओके, सो दोस्तों होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा, यूजफुल लगेगा। आप आपके एप्लीकेशंस तय कर सकते हैं, उसमें आप लोगों को समझ में आएगा कि किस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जाते हैं नए फीचर के पास, दैट इज व्हाट जीमेल शेड्यूलिंग। okay sir, how to change the time of gmail which already in snooze। okay, तो मुकुंद मुंदड़ा ने क्वेश्चन किया है कि सर जीमेल जो भी हम लोगों ने स्नूज किए हुए है उसका टाइमिंग जो भी है वो किस तरीके से चेंज करना है। सो लेट मी एड्रेस दिस क्वेश्चन फर्स्ट। आप देखिए यहाँ पर आप लोगों को स्नूज में आप लोग जाते हैं, स्नूज में जैसे ही आप जाओगे यहाँ पर आप लोगों को क्या है, यहाँ पर फिर से आप लोगों को क्लिक करना है स्नूज। यहाँ पे आप डेट और टाइम पिकअप कर सकते हैं। जो डेट और टाइम आपको पिकअप करना है, मान लीजिए 15 जुलाई मुझे लेना है, टाइम चेंज करना है, यहाँ से आप लोग टाइम भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 10 AM का टाइम दे देता हूँ, ओके, और इसको बोल देता हूँ सेव। जैसे मैं इसको सेव करूंगा आप यहाँ पर देख पाओगे कि जो अर्लियर 12 जुलाई का जो मेल था अब वो 15 जुलाई को क्या हो चुका है, सेट हो चुका है। तो इस तरीके से आप आपका जो ऑलरेडी स्नूज किए हुए ईमेल है, आपको स्नूज करके जो इनबॉक्स आएगा उसमें जाना है, वहां पर आपको आपके स्नूज किए हुए ईमेल का लिस्ट दिखाई देगा, वहां पे फिर से आपको स्नूज का ऑप्शन मिलेगा, उस स्नूज के ऑप्शन में जाइए और जब आपको उसको स्नूज करना है आप उसको स्नूज करके रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप डेट और टाइम स्नूज का जो भी है वो चेंज कर सकते हैं। आई होप मुकुंद मैंने आपका आंसर जो भी है यहाँ पर दिया है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग स्नूजिंग का यूज कर सकते हैं। So let's move towards what the next feature, that is what Gmail scheduling. Now this is very important feature, mail scheduling। कई बार आप लोगों को हम लोग बोलते हैं कि आपका असाइनमेंट का डेडलाइन सो एंड सो है, और उस पर्टिकुलर डेडलाइन के ऊपर कई स्टूडेंट्स के असाइनमेंट्स रेडी रहते हैं, लेकिन उस डेडलाइन वो चाहते हैं कि इसको मैं क्या करूंगा, कल या परसों क्या करता हूँ, मेल करता हूँ, और कल और परसों के मेल पर वो उस भरोसे पे रह जाते हैं, भूल जाते हैं कई बार उस मेल को भेजना, और फिर आपका काम रह जाता है। कई बार आपको ऐसा बोला जाता है, जैसे आपके एचओडी आपको बोलते हैं, आपके फैकल्टीज आपको बोलते हैं कि डियर स्टूडेंट्स आप मुझे कल 1 बजे याद दीजिए, आप मुझे 1 बजे यदि मेल करोगे तो मैं आपका काम कर दूंगा। अब 1 बजे मेल करना है तो आप लोग भी बहुत बिजी है आज की डेट में। आज की डेट में बिजी कौन नहीं है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ही बिजी है, ऐसे कुछ नहीं। आजकल मेरे स्टूडेंट्स भी बहुत बिजी है, तो स्टूडेंट्स का भी क्या होता है, दिमाग से निकल जाता है कि कल 1 बजे सर को कॉल करना चाहिए था, और फिर आप जब 2-3 बजे सर के पास आते हैं, सर आपको बोलते हैं आपको तो मैंने 1 बजे का टाइम दिया था, आप आए नहीं है उस पर्टिकुलर टाइम पर। तो ऐसे इश्यूज से यदि आप लोगों को छूटना है तो आप बेहतर जीमेल शेड्यूलिंग का क्या करें, यूज करें। तो किस तरीके से इसका यूज होगा, तो आपको क्या करना रहेगा, कंपोज के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप कंपोज के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर एक शेड्यूल्ड नाम का क्या दिखाई देगा, इनबॉक्स दिखाई देगा। जैसे स्नूज नाम का इनबॉक्स था वैसे ही शेड्यूल नाम का इनबॉक्स आता है। शेड्यूल किए हुए ईमेल उस इनबॉक्स में क्या होंगे, आपके स्टोर होंगे। तो किस तरीके से शेड्यूल करना है, क्या यूज है शेड्यूलिंग का, तो सबसे पहले आपको यह समझना जरूरी है। तो देखिए यहां पर आपको एक दिखाई दे रहा है, जब भी आप कोई मेल किसी को लिखना चाहते हैं, आपको यदि बोला गया, आपके हेड ने आपको बोला है कि आप मुझे कल 11 बजे याद दीजिए, मैं आपका काम कर दूंगा, आप मेल कर दीजिए मुझे कल 11 बजे, तो मैं आपका काम कर देता हूं। तो 11 बजे आपको मेल करना है तो आप क्या कीजिए, एक तो आप याद रखिए, आप क्या करते हैं, आपके मोबाइल में क्या कर दोगे, अलार्म लगा दोगे, 11 बजे का रिमाइंडर सेट कर दोगे, और वो आपको 11 बजे रिमाइंड करेगा। फिर आप जीमेल के ऊपर आओगे और फिर बाद में उसको क्या करोगे, मेल को सेंड करोगे। इंस्टेड ऑफ दैट आप यहाँ पर सिंपली मेल शेड्यूलिंग का यूज कर सकते हैं। तो वो किस तरीके से यूज करना है, कंपोज में जाना है, जिसको भी आपको मेल करना है, आपके हेड को आपको मेल करना है, आप यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पर जो भी आपको मैटर लिखना है वो पूरा मैटर लिख दीजिए, और फाइनली डायरेक्ट सेंड के जगह पे आपको एक डाउन एरो की या अप एरो की दिखाई देगा, उस एरो की के ऊपर आप क्लिक कीजिए। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने शेड्यूल सेंड ऐसा मैसेज आता है। ओके, तो डाउन एरो की को क्लिक कीजिए, शेड्यूल सेंड के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जहां पर आप कौन से टाइम पे उसको शेड्यूल करना चाहते हैं वो टाइम आप ले सकते हैं। जैसे आपको मैंने बोला है कि कल 11 बजे मुझे आपका मेल आना चाहिए, तो आप कल 11 बजे का टाइम यानी आप कल का टाइम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं और डन कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली उस डेट और टाइम पर ये वाला मेल जो भी है मुझे क्या हो जाएगा, शेड्यूल करके और सेंड हो जाएगा। तो देखते हैं इस फीचर को लाइव कि किस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल
मैं मेरे प्रिंसिपल को एक मेल लिखना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर कंपोज किया, मैं प्रिंसिपल की जगह पे क्या कर देता हूँ, अपना ही ईमेल आईडी यूज कर लेता हूँ, sanvi.mr, ये मैंने मेल लिया है, यहाँ पर मैंने बोला टेस्ट मेल फॉर शेड्यूलिंग, इस तरीके से मैंने इसके ऊपर लिख दिया टेस्ट मेल फॉर व्हाट, शेड्यूलिंग। और यहाँ पर कुछ मैटर मुझे डालना था, हेलो सर, दिस इज टू रिमाइंड यू फॉर सम एक्टिविटी, वो एक्टिविटी आप यहां पर डाल सकते हैं। ओके जैसे आप लिखोगे उसके बाद आपको क्या करना है, डायरेक्टली हम लोग सेंड के ऊपर क्लिक करते हैं ना, उसके जगह पे आपको डाउन एरो की के ऊपर क्लिक करना है। सो क्लिक ऑन डाउन एरो की, जैसे ही डाउन एरो की के ऊपर क्लिक करोगे आपको यहाँ पे शेड्यूल सेंड करके बटन दिखाई देगा, उसके ऊपर क्लिक कीजिए। उसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये आपको टाइम पूछ रहा है, आपको अब कल 11 बजे का टाइम सेट करना है, तो आपको क्या करना रहेगा, पिकअप डेट एंड टाइम, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। ओके कल के डेट पर 11 बजे का टाइम, यानी यहाँ पर आप लोग टाइम दे सकते हैं, यानी आप लोग को कब करना है, कल यानी 12 तारीख को 12, आई एम सिलेक्टिंग दैट डेट एंड देन आई एम मेंशनिंग व्हाट हियर द टाइम, दैट इज व्हाट 00। ये मैंने कर दिया और इसको बोल दिया शेड्यूल्ड सेंड। जैसे मैं शेड्यूल सेंड करता हूं, ये वाला मेल मेरा क्या हो चुका है, शेड्यूल हो चुका है। आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे वो दिखाई देता है आपको कि दिस मेल इज नाउ शेड्यूल्ड एट 11 AM टुमारो। अब ये मेल मुझे देखना है कि कहां पर अवेलेबल होगा, तो आपको यहाँ पे शेड्यूल्ड नाम का क्या दिखता है, इनबॉक्स दिखाई देगा, उसके ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगा कि ये वाला मेल जो भी है आया है। मैं इसको ओपन करता हूं, जैसे ही ओपन करता हूं तो यहाँ पर मुझे पता चलता है, देखिए कि ये वाला ईमेल जो भी है ये शेड्यूल किया गया है इस पर्टिकुलर डेट और इस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर। तो इस तरीके से आप लोग ईमेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सर मैं रात को 1 बजे तक काम कर रहा था, 2 बजे तक मैंने रिपोर्ट का काम किया, शेड्यूल करते हैं ईमेल और सुबह यानी शाम को 7 बजे ही काम खत्म कर देते हैं। लेकिन क्या कर देते हैं वो लोग कि रात का शेड्यूलिंग कर देते हैं, रात को 2 बजे वो मेल जाएगा। रात को 2 बजे मेल गया कि टीचर को क्या लगता है, माय गॉड कितने अच्छे स्टूडेंट्स है, कितना मेहनत कर रहा है, रात को इतनी बजे तक इसने काम करके इसने मुझे मेल करके और फिर ये सोया है। ये हमेशा जरूरी नहीं है कि ये सच हो। शेड्यूलिंग की वजह से आज की डेट में ये ढूंढना बहुत मुश्किल है कि जो मेल आपको आया है वो शेड्यूल के थ्रू करके आया है या रेगुलर आया है, ये ढूंढना बड़ा मुश्किल है। तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है। इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसका दोनों तरीके का यूज आप कर सकते हैं, सही के लिए और गलत के लिए। मैं हमेशा आपको सही राह वाली बात बोलूंगा। जब भी आपको कहीं पे भी लगता है कि ये वाला कुछ डेडलाइन के हिसाब से काम करना है, 4 दिन के बाद कोई चीजें आपको भेजनी है, आज यदि वो आपकी रेडी है, आप 4 दिन के बाद डेट सिलेक्ट करके उसको शेड्यूलिंग कर लीजिए और शेड्यूल करके उसको भेज दीजिए। तो इस तरीके से जीमेल शेड्यूलिंग का आप लोग क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत इजी फीचर्स है डियर फ्रेंड्स, सब हमारे आंखों के सामने ही है, बस हम लोगों को देखना है और उसको एक्सप्लोर करना है। दैट इज व्हाट द कंसर्न। Okay, now let's move towards what the next feature. If you have doubt, you can always ask on what chat window. आप chat window के ऊपर जब भी कोई डाउट पूछोगे मैं उसको कवर करने की कोशिश करूंगा। All right? हाँ, एक क्वेश्चन आनंद गुप्ता ने फिर से किया है कि उन्होंने क्वेश्चन किया, सर इफ वी शेड्यूल एनी मेल एट पर्टिकुलर टाइम एंड इफ देयर इज नो इंटरनेट कनेक्शन एट दैट टाइम, सो व्हाट विल हैपन। इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं, आपने लॉगिन भी नहीं किया है तो ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलर समय पर वो चला जाएगा, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स गूगल इज टेकिंग केयर ऑफ दैट, तो ऑटोमेटिकली वो जाएगा ही जाएगा। और आज की डेट में क्या हो गया है, आपका जीमेल ये मोबाइल के ऊपर कनेक्टेड है ही, उस पर्टिकुलर टाइम पे भी वो वाला जो भी मेल है वो बिल्कुल जाएगा। आप कोशिश करके देख सकते हैं, आप शेड्यूल करके देखिए और 10 मिनट के बाद आपका इंटरनेट आप बंद कर दीजिए, आप देखिए आपको मेल का फीचर जो भी है वो क्या दिखाई देता है। याद रखिए आपके मोबाइल के ऊपर कुछ भी स्टोर नहीं है, ये सारा गूगल के क्लाउड के ऊपर स्टोर है, तो अकॉर्डिंगली गूगल क्या करेगा, उसका एग्जीक्यूशन जो भी है वो कर देगा। सो दिस यू कैन एबल टू व्हाट वर्क आउट। वेरी गुड क्वेश्चन, आई एम सो हैप्पी विद सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। वेल डन आनंद, वेरी गुड, कीप इट अप। So I hope I have tried to answer your query. Okay, so let's move towards what the next feature, that is what the confidential email. This is one of the best facility. कई बार आप लोगों को कुछ confidential email भेजना है। हमारे इंडिया में confidential का मीनिंग क्या होता है, हम लोग जब भी कोई फ्रेंड्स को कोई confidential बात बोलते हैं, डियर फ्रेंड ये confidential है, किसी को बोलना मत, तो हमारे यहाँ पर आदत क्या है, confidential बोला कि उसको पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है, पूरे दुनिया में उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को जो भी है वो भेज देते हैं। तो आज तक अब मैंने क्या किया है, थोड़ा अलग तरीका यूज किया है। मैं स्टूडेंट को बोलता हूँ कि ये कॉन्फिडेंशियल है, किसी को बोलना मत, और मुझे वो न्यूज एक्चुअली स्प्रेड करने की रहती है, बच्चे ऑटोमेटिकली उसको स्प्रेड करते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी को आपको मार्केटिंग की जरूरत नहीं है। आज आपका दोपहर में सेशन है ना डिजिटल मार्केटिंग, तो कॉन्फिडेंशियल या ऐसे कुछ आप लोगों ने बोला उसको जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिकली लोग क्या कर देते हैं, स्प्रेड करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, आपको यदि लगता है कि कोई ईमेल आप कॉन्फिडेंशियल मेल आप किसी को भेजते हैं,
कॉन्फिडेंशियल का बहुत सीधा साधा मीनिंग है। उसका मीनिंग क्या है? जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको कॉन्फिडेंशियली बता रहा हूं वो आप में और मेरे में ही सीमित रहनी चाहिए। आपने वो इंफॉर्मेशन किसी को पास ऑन नहीं करनी चाहिए, कहीं पे लिख के नहीं रखना चाहिए। ये सारी चीजें आप लोगों ने केयर लेनी चाहिए जब भी मैं आपको कॉन्फिडेंशियल ईमेल के बारे में बोलता हूं। ओके, तो किस तरीके से हम लोग कॉन्फिडेंशियल मेल को क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं? कभी आप लोगों ने सोचा है, मैंने एक आध मेल आपको यदि भेजा है और उस मेल को भेजने के बाद मैं चाहता हूं कि आपके इनबॉक्स में आके उसको डिलीट कर दूं। मैं चाहता हूं कि आपको जो मेल मैंने भेजा है वो कल सुबह 11 बजे तक, 11 बजे के बाद आपको दिखना नहीं चाहिए। आपके आपके इनबॉक्स से उसको क्या करते आना चाहिए, मुझे रिमूव करते आना चाहिए। आप देखिए ये फीचर इतना इजी नहीं है। आपके जीमेल का एक्सेस मुझे चाहिए तभी जाके मैं उसको रिमूव कर सकता हूं, या फिर मैं गलती से मेरे से गलती से आपको मेल आया है आप डिलीट कर दीजिए। हम लोगों को लगता है उसने डिलीट किया है, वो उसको डिलीट कर रहा है, क्या यूज कर रहा है भी नहीं मालूम। तो यदि आपको लगता है कि आपने कोई मेल भेजा है किसी को और एक पर्टिकुलर समय के बाद वो उसके इनबॉक्स में से डिसअपियर होना चाहिए, रिमूव होना चाहिए, तब जाके आप कॉन्फिडेंशियल मेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कॉन्फिडेंशियल मेल का इस्तेमाल दो चीजों के लिए किया जाता है। एक तो आपको लगता है कि वो मेल एक पर्टिकुलर समय के बाद उसके इनबॉक्स से रिमूव होना चाहिए, उसके लिए आप कर सकते हैं। और दूसरा आप क्या कर सकते हैं, दूसरा आपको यदि कोई इंफॉर्मेशन ऐसे पास ऑन करना है कि सामने वाला बंदा उस मेल को ना प्रिंट कर सके, ना डाउनलोड कर सके, ना वो किसी को फॉरवर्ड कर सके, तो तब जाके आप कॉन्फिडेंशियल मेल का क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किस तरीके से आप हम लोग कॉन्फिडेंशियल मेल का इस्तेमाल करेंगे? तो नेचुरली आपको कंपोज में जाना है। आप कंपोज में जाइए, उसके बाद आपको जैसे मैंने पेन का सिंबल दिखाया था उसके बगल में आपको यहाँ पर वॉच का सिंबल दिखाई दे रहा है, लॉक का सिंबल, लॉक एंड वॉच दोनों साथ में आए हैं। तो आप लोग इसको, ये कॉन्फिडेंशियल मोड होता है, इसको आप टर्न ऑन कर सकते हैं। जो लोग मोबाइल के थ्रू यूज कर रहे हैं, थ्री डॉट्स के ऊपर जब आप क्लिक करोगे मोबाइल के ऊपर, वहां पर भी ये सारे फीचर्स अवेलेबल है। जो फीचर्स मैं ले रहा हूं, मैं ये केयर लेके ले रहा हूं कि आप मोबाइल के थ्रू भी उसको यूज कर सकते हैं, आपके लैपटॉप के थ्रू भी उसको यूज कर सकते हैं। ये सारी चीजें आज आपको परफॉर्म करके देखनी है। आई विल बी हैप्पी आप यदि गूगल क्लासरूम में इसको क्या कर दोगे, अपलोड करोगे। मैं गूगल क्लासरूम में एक आपको बना के रख दूंगा जिसमें आपको क्या करना है, जितने भी फीचर्स आज मैंने लिए हैं आप खुद हैंड्स ऑन करके देखिए, उसके स्नैपशॉट लीजिए, एक पीडीएफ जनरेट कीजिए और उसको क्या कर दीजिए, गूगल क्लासरूम में अपलोड कीजिए। मुझे बहुत खुशी होगी यदि आप ये करोगे। आई डोंट वांट टू मेक इट कंपल्शन, बट यू विल बी हैप्पी। आपको खुद को कॉन्फिडेंस आएगा यदि आप ये फीचर्स करके देखते हैं। तो कॉन्फिडेंशियल मेल को क्या करना है, कंपोज के ऊपर जाना है। कंपोज के ऊपर जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पर सिंबल दिखाई देगा, वॉच एज वेल एज व्हाट लॉक, ये दोनों का सिंबल दिखाई देगा। यू हैव टू क्लिक ऑन दैट। व्हेन यू क्लिक ऑन दैट, वो क्या करेगा, एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन करेगा जिसका नाम आता है कॉन्फिडेंशियल मेल। ये आपको क्या करता है, यहाँ पे सेट एक्सपायरेशन यानी क्या, ये वाला ईमेल आपके इनबॉक्स पे जब भी मैं यहाँ पे आपको भेज रहा हूं तो आपके इनबॉक्स में से ऑटोमेटिकली यानी रेसिपिएंट के ईमेल इनबॉक्स से कब डिलीट होना चाहिए, तो वो डेट और टाइम यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप एक्सपायरेशन टाइम सेट कर सकते हैं। और दूसरा, यदि आपको लगता है कि एसएमएस पासपोर्ट भी जाना चाहिए, कई बार ईमेल्स एक दूसरे लोग क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन आपको लगा कि ईमेल का वो पासपोर्ट जब तक नहीं जाएगा तब तक उसको ओपन नहीं कर पाएगा। तो भले ही आपका मेल कोई और यूज कर रहा होगा, लेकिन जब तक उसके पास पासपोर्ट नहीं है वो उसको यूज नहीं कर पाएगा। तो आप पासपोर्ट भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। मैं आपको ये डेमो, लाइव डेमो जो भी है वो दूंगा तो आपको समझ में आएगा और भी इसका बेहतर यूज। ओके, तो जैसे ही मैं आपको यहाँ पर ये वाला डेमो जो भी है वो देता हूँ और उसके बाद हम लोग फिल्टरिंग के ऊपर जाएंगे। ओके, तो क्या करना है, मुझे यदि किसी को मेल भेजना है, मैं कंपोज पर जा रहा हूं। यहां पर मुझे मान लीजिए मैं अपने आप को एक मेल भेज रहा हूं। ओके, मैंने इसको बोला है कॉन्फिडेंशियल मेल। ओके, जिसपे मैं क्वेश्चन पेपर भेजना चाहता हूं। मान लीजिए मैंने क्वेश्चन पेपर भेजना है तो वो मैं यहां पर भेज रहा हूं। ओके, और यहां पर मैं बोल रहा हूं टेस्ट मेल फॉर चेकिंग ऑफ कॉन्फिडेंशियल मेल, ऐसे मैंने यहां पर लिखा हुआ है। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को ये क्वेश्चन करते रहते हैं कि सर यदि हम लोग इसको एक आध फाइल भेजते हैं तो मैं यहाँ पे फाइल भी अटैच कर देता हूँ। ओके, ये वाला फाइल एक अटैच कर देता हूँ, तो फाइल भी मैंने अटैच किया है। ओके, ये वाला मेल मेरा पूरा लिख के हो चुका है। अब इस मेल को मुझे कॉन्फिडेंशियल बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टर्न ऑन कॉन्फिडेंशियल मोड। तो वो कहां पर दिया गया है आपको, यहाँ पर जहां पे पेन का सिंबल मैंने दिखाया था उसके बगल में ही एक सिंबल आप लोगों को दिखाई देगा, वो सिंबल है टर्न ऑन कॉन्फिडेंशियल मोड। क्लिक ऑन दैट। जैसे आप क्लिक करोगे वो आपको बोलेगा कि ये ईमेल आईडी कब डिलीट होना चाहिए इस मेरे इनबॉक्स से। तो मैंने मेरे इनबॉक्स से यानी क्या, सामने वाले जिसको मैंने भेजा है उसके इनबॉक्स में से उसको डिलीट करना है। कब डिलीट करना है, तो यहाँ पे मैंने बोला है एक ही दिन में, विद इन वन डे उसको मुझे क्या करना है, डिलीट करना है। तो कब डिलीट हो जाएगा वो, संडे को जुलाई 12 तारीख को वो डिलीट हो जाना चाहिए।
ओके, और पासकोड भेजना है क्या? यस, मुझे पासकोड भेजना है। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे ये सिलेक्ट कर दिया कि मुझे एसएमएस पासकोड भेजना है, और मैंने इसको बोल दिया सेव। बस ये दो ही चीजें मुझे करनी है। जैसे ही मैं ये करता हूं, डियर स्टूडेंट्स, आप फोकस करें कि यहां पर आपके सामने कुछ आया है। ओके, ये आपको क्या बोल रहा है कि ये वाला जो भी मेल है ये कब एक्सपायर होगा, वो इंफॉर्मेशन आपको दिखाई दे रही है कि ये 12 जुलाई 2020 को एक्सपायर होगा। दूसरा, जो भी रेसिपेंट है, यानी जिसको मैं ये मेल भेज रहा हूं, वो बंदा ना इस मेल को फॉरवर्ड कर पाएगा, ना कॉपी कर पाएगा, ना प्रिंट कर पाएगा, ना डाउनलोड कर पाएगा। अब नेचुरल क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, सर जब डाउनलोड नहीं कर पाएगा तो आपने जो फाइल उसको भेजा है वो कैसे उसको देख पाएगा? तो वो हम लोग देखते हैं कि ये मेल हम लोग प्रैक्टिकली भेज रहे हैं और हम लोग उसको क्या करेंगे, चेक करेंगे। सो मैं इसको क्या कर रहा हूं, अभी सेंड बोल रहा हूं, सेंड। जैसे मैं सेंड बोलूंगा तो ये मुझे बोल रहा है कि ये वाला जो भी मेल आईडी है ये कौन से बंदे का है, उसका मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको देना रहेगा। तो मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर दे रहा हूं, मैंने मोबाइल नंबर अपना यहाँ पर दिया है और बोल रहा हूँ सेंड। मैंने अपना मोबाइल नंबर दे दिया, सेंड कर दिया। जैसे मैं सेंड बोलूंगा, अब मुझे कहा जाना है, चेक करना है कि यहाँ पर कोई पर्टिकुलर मेल जो भी है वो आया है क्या। मैं चेक करूंगा कि उसको आया होगा, तो यहाँ पर मुझे चेक करते रहना पड़ेगा कि मेल कोई आया है क्या। ओके, अभी तक नहीं आया है, आई एम सर्चिंग दैट। देखिए यहाँ पर एक मेल आया है, ओके, महेश संघवी के नाम से आया है, कॉन्फिडेंशियल मेल आया है। मैं उसको ओपन कर रहा हूं। जैसे मैं उसको ओपन करूंगा, सिर्फ सब्जेक्ट का लाइन मुझे दिखाई दिया कि ये कॉन्फिडेंशियल मेल है, लेकिन क्या डिटेल्स है वो कुछ भी नहीं दे रहा है। वो मुझे क्या बोल रहा है, यहां पर क्लिक करो तो आपको पासपोर्ट जाएगा। तो मैं क्लिक कर रहा हूं यहां पर। जैसे मैंने क्लिक किया है तो मुझे यहां पर पासपोर्ट आना चाहिए। ओके, अब देखिए मेरे मोबाइल के ऊपर मुझे पासपोर्ट जो भी वो आ चुका है। ओके, ये पासपोर्ट अब मैं यहां पर एंटर कर रहा हूं। जो भी पासकोड आया है उस पासकोड को मैं यहां पर एंटर करूंगा। ओके, होप आप सभी लोगों को ये पासकोड जो भी वो दिखाई दे रहा होगा। तो ये पासकोड मैं यहां पर एंटर कर रहा हूं। पासकोड मैंने एंटर किया एंड आई विल से सबमिट। जैसे ही मैं सबमिट बोलूंगा तब जाके ये मेल मेरे सामने क्या होगा, ओपन होगा। आप देखिए अब मुझे इस मेल का बॉडी दिखाई दे रहा है और यहां पर जो इमेज मैंने भेजना था वो भी आया है। ओके, अब देखिए ये वाला जो भी मेल है, ये ना देखे मुझे ना तो कोई सिलेक्ट करने दे रहा है, यानी कॉपी करने का कोई स्कोप नहीं है, मैं यहाँ पे सिलेक्ट भी नहीं कर पा रहा हूँ। दूसरा, यहाँ पर मैं इसको फॉरवर्ड करना चाहता हूँ तो कोई ऑप्शन मेरे पास नहीं आया है, फॉरवर्ड का भी ऑप्शन नहीं आया है। मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ तो आप देखिए कॉन्फिडेंशियल मेल है, कुछ भी डेटा आपको नहीं देता है, कुछ भी नहीं। देखिए यहाँ पे कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं आ रहा है, सिर्फ कॉन्फिडेंशियल मेल है इतना बोला है, तो प्रिंट करके भी कुछ यूज नहीं होने वाला है, बराबर है। तो यहाँ पर मुझे ये समझ में आता है कि ये मेरा कॉन्फिडेंशियल मेल जो भी है इसका इस्तेमाल करना इतना इजी नहीं है। ओके, तो लोगों को ये दिखाई नहीं देगा, तो मुझे क्या करना रहेगा, यहाँ पर ये वाला जो भी मेल है, अब आप बोलो कि इसको ओपन करके देखता हूँ। इसको मैंने ओपन किया, मैं डाउनलोड करना चाहता हूँ। ओके, मैंने इसको डाउनलोड के ऊपर क्लिक किया। ओके, मैं डाउनलोड के ऊपर उसको क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि ये मैं चाहता हूं कि मेरे मशीन में इसको स्टोर करके रखूं। मैं इसको डाउनलोड को क्लिक कर रहा हूं लेकिन हो कुछ भी नहीं रहा है। सो दिस इज नॉट गेटिंग डाउनलोडेड। सो दिस इज व्हाट द ब्यूटी। मैंने आपको ये समझ में आएगा कि ये वाले जो भी ईमेल्स है, ओके, इसको मैं डाउनलोड भी कर रहा हूं, ये मुझे डाउनलोड नहीं करने देगा। ये सिर्फ मुझे व्यू के ऑप्शंस यहाँ पर सामने रखता है, मैं व्यू कर सकता हूं, बट आई कैन नॉट एबल टू व्हाट डाउनलोड दिस। सो दिस इज व्हाट द ब्यूटी ऑफ कॉन्फिडेंशियल मेल। आप कॉन्फिडेंशियल मेल जब भी भेजोगे, यहाँ पर ये मेल मुझे आया है तो ये मुझे बोल रहा है कि ये कब एक्सपायर होने वाला है, 12 जुलाई को ये वाला मेल क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। तो यहाँ पे सच में कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन होती है। आई कैन नॉट एबल टू फॉरवर्ड दिस मेल, आई कैन नॉट एबल टू प्रिंट दिस मेल। और ये ऑप्शन क्या, आज के दिमाग में कंप्यूटर इंजीनियर बहुत होशियार है। व्हाट इफ मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप मोबाइल का पिक्चर ले सकते हैं, तो कुछ नहीं कर सकते उसको। तो कुछ कुछ चीजों के लिए स्काई इज द लिमिट, हर एक चीज का सॉल्यूशन है, हर एक चीज की तोड़ है, लोगों ने ढूंढ के निकाली है। लेकिन आप यदि मेल के ऊपर उसको सोचते हैं तो मेल के ऊपर ये कुछ भी करना ये मुमकिन नहीं है। सो दिस वे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, कॉन्फिडेंशियल मेल का यूज कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर देखूंगा कि कुछ क्वेश्चंस मुझे किए हैं, सो लेट मी चेक दैट क्वेश्चंस। ओके, सनत ने क्वेश्चन किया है सर स्क्रीनशॉट। हाँ, स्क्रीनशॉट हम लोग ले सकते हैं, तो वो मैंने बताया ऑलरेडी। ओके, मुकुंद ने बोला है सर व्हाट विल हैपन व्हेन आई सेंड अ मेल बट द पर्सन एट द अदर एंड हैव नॉट सीन दैट मेल बिफोर डेडलाइन विल बी अवेलेबल
नहीं, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि वो बंदा जो भी है, यदि उस डेडलाइन के पहले वो देख नहीं रहा है तो ऑटोमेटिकली उसके मेल आईडी से वो चला जाएगा, ही कैन नॉट एबल टू सी दैट। ओके, तो मैं यहाँ पर हमेशा बोलूंगा कि ये एक्सपेक्टेड है जब भी आप कोई डेडलाइन सेट करते हैं। ईमेल इज वन ऑफ द फॉर्मल कम्युनिकेशन, और 24 आवर्स का टाइम आपने कम से कम सामने वाले को देखने के लिए देना चाहिए। 24 घंटे में वो यदि इस मेल को नहीं देख रहा है, इसका मतलब वो यदि रिमूव भी हो जाता है, कोई बंदा नहीं है। आप फोन करके भी इन्फॉर्म कर सकते हैं कि आपको मेल भेजा है, आप लोग देख लीजिए, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मेल आपको मैंने भेजा है। तो यही एक तरीका है। वो बंदा यदि उस पर्टिकुलर समय के अंदर उसको नहीं देख पाया, ऑटोमेटिकली दैट मेल विल बी डिसअपियर, विल गेट डिलीटेड फ्रॉम हिज और हर इनबॉक्स। तो रेसिपिएंट के इनबॉक्स से ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट द फीचर दैट इज नोन एज कॉन्फिडेंशियल मेल। आई होप आई आंसर योर क्वेरी। So let's look at the last feature of this session, that is what mail filtering. अब ईमेल काफी आ जाते हैं और ईमेल को भी सर्च करना बहुत चैलेंजिंग हो गया है। कहा किस तरीके से ईमेल को ढूंढे, बहुत चैलेंजिंग होता है। तो ईमेल सर्च करने के भी तरीके हैं, जैसे हम लोगों ने गूगल सर्च करने के तरीके देखे हैं, वैसे हम लोग जीमेल, सॉरी सर्चिंग का नहीं है ये, फिल्टरिंग का है। तो ये फिल्टरिंग का काफी अच्छा यूज आप लोग कर सकते हैं। तो देखिए किस तरीके से यूज होता है। जीमेल फिल्टरिंग के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सर्च, अब जैसे ही जीमेल में जाते हैं तो आपको एक सर्च बार दिखता है, उस सर्च बार के डाउन एरो की आपको दिखाई देगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाला एक डायलॉग बॉक्स जो भी है वो सामने आएगा। उस डायलॉग बॉक्स में आप लोग यहाँ पर डाल सकते हैं जो भी आपको डालना है। सर्चिंग आप यानी यहाँ पे फिल्टरिंग आप लोग डाल सकते हैं, यानी क्या, किसके थ्रू आपके पास ईमेल आया तो क्या एक्शन आप लोगों ने लेना है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपको लगता है कि आपके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या आपके प्रिंसिपल के थ्रू जो भी ईमेल आपको आते हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट ईमेल्स है, आप उसको स्टार मार्क करके रखना चाहते हैं, तो आप किस तरीके से उस ईमेल का यूज करोगे। आपको क्या करना रहेगा, यहां पर जाना है, आप उस ईमेल का जो भी जिनसे भी वो ईमेल आ रहा है, जैसे प्रिंसिपल सीओई या HOD.com COE@snjp.org, वो आप यहाँ पर दोगे। वो लिखने के बाद आपको क्या करना रहेगा, क्रिएट फिल्टर बटन के ऊपर क्लिक करना है। यू नीड टू क्लिक ऑन व्हाट, क्रिएट फिल्टर बटन। जैसे आप क्रिएट फिल्टर बटन के ऊपर क्लिक करोगे, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा। इस डायलॉग बॉक्स में बहुत सारे एक्शंस दिए हैं, यानी क्या एक्शन लेना चाहते हैं आप, उस ईमेल को आप स्किप करना चाहते हैं क्या, यानी डायरेक्ट आर्काइवल में वो चला जाएगा। उसको आप मार्क एज रेड करना चाहते हैं क्या, उसको स्टार करना चाहते हैं क्या, उसको कोई लेबल डायरेक्टली आप अप्लाई करना चाहते हैं क्या, वो कहीं पे फॉरवर्ड करना चाहते हैं क्या, या आप डायरेक्टली उसको डिलीट करना चाहते हैं। ये सारे फीचर्स यहाँ पर दिए हैं, आप जितने भी पढ़ोगे आप एक्सप्लोर कर पाओगे। मैं इसमें से कुछ फीचर्स आपको लेके एक हैंड्स ऑन डेमो देता हूं तो आपको काफी बेहतर वो लगेगा। ये सारे फीचर्स सिलेक्ट करने के बाद आपको क्रिएट फिल्टर के ऊपर क्या करना रहेगा, क्लिक करना होगा और आपका काम हो जाएगा। तो लेट्स टेक हैंड्स ऑन डेमो। अब देखिए मुझे यहाँ पर काफी मेल्स आ रहे हैं। ओके, ये ऑनलाइन कोर्स का मेल आया है। ओके, मैं इसको क्लिक करता हूँ, ऑनलाइन कोर्स। ओके, ये कहाँ से आ रहे हैं, एनपीटेल से मुझे ये वाले कोर्स जो भी वो आ रहे हैं। मुझे ये मेल्स जो भी है, जो भी आते हैं, इसके ऊपर मुझे कुछ तो एक्शन लेना है। मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूं, मैं यहाँ पर फिल्टर के ऊपर जो भी था उसके ऊपर क्लिक कर रहा हूं। ओके, और यहाँ पर मैं दे रहा हूँ फ्रॉम। जैसे ही मैं फ्रॉम दूंगा तो ये क्या कर देगा मेरे लिए, जितने भी मेल्स मुझे ऑनलाइन कोर्सेज से आए हैं, देखिए मैं सर्च कर देता हूँ, जितने भी मेल्स मुझे ऑनलाइन कोर्स से आए हैं वो सारे मेल आईडीज के हिसाब से इसको क्या कर देगा, वो फिल्टर कर देगा, वो सारे मेल्स मुझे यहाँ पर दिखाई देंगे। ओके, अब मुझे इस मेल्स के साथ में कुछ एक्शन करना है। क्या एक्शन लेना चाहता हूं मैं, तो मैं यहाँ पर जा रहा हूं। ओके, मैंने ये बोला है और क्रिएट फिल्टर में क्लिक कर रहा हूं। आई वांट टू क्लिक ऑन क्रिएट फिल्टर। जैसे मैंने क्रिएट फिल्टर के ऊपर क्लिक किया, ये मुझे क्या करेगा, मुझे क्या करना है, ये सारे मेल्स जो भी उसको डिलीट करना है, जितने भी मेल्स आए हैं उसको डिलीट करना है। और यहाँ पर आपको बोलेगा, देखिए अप्लाई फिल्टर टू मैचिंग कॉन्वर्सेशन, इसको भी आप क्लिक करके रखिए। इसको आप क्लिक करोगे तो इसका बेनिफिट क्या होगा, आने वाला ईमेल तो डिलीट होगा ही होगा, लेकिन जो एग्जिस्टिंग है उसको भी क्या कर देगा, ये डिलीट कर देगा। तो ये सारे मेल्स मुझे क्या कर देने हैं, डिलीट करने हैं। मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे डिलीट इट, और यहाँ पर ये सिलेक्ट कर चुका हूँ। अब मैं इसको बोलता हूँ क्रिएट फिल्टर। अब देखिए ये सारे मेल्स ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे। ओके, ये सारे डिलीट हो चुके हैं। मैं फिर से इसको सर्च करना चाहता हूं, मैं इसको फिर से सर्च करना चाहता हूं। अब देखिए ऑनलाइन वाला सारा गायब हो चुका है। मैं फिर से सर्च करूंगा। ओके, ये जो भी है ये फॉरवर्डेड है, बाकी तो जो ऑनलाइन वाले डायरेक्ट थे वो रिमूव हो चुके हैं। तो वो कहां चले गए होंगे, वो सारे बीन्स में गए होंगे। सो मैं बीन्स के ऊपर जाता हूं, यानी ट्रैश। ट्रैश आपको कई जगह पे दिखाई देता है, मोबाइल के थ्रू आप एक्सेस करोगे तो आपको बीन दिखाई देगा। मैं ट्रैश के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं ट्रैश के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये सारे ऑनलाइन वाले मेल देखिए ये यहाँ पर आ चुके हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं यदि सर्च करने जाऊंगा, मुझे ऑनलाइन वाले मेल चाहिए, तो आपको यहाँ पे सारे ऑनलाइन वाले मेल जो भी है वो ट्रैश में दिखाई दे रहे हैं।
तो इस तरीके से आप एक ही झटके में सारे मेल्स को डिलीट कर सकते हैं। ओके, ये एक बेनिफिट उसका है। दूसरा बेनिफिट इसका जो भी रहेगा वो मैं आपको दिखाता हूं कि फॉर एग्जांपल यदि कोई इंपॉर्टेंट ईमेल मुझे आता है, फॉर एग्जांपल यहां पर ये एचओडी का मेल आईडी है, मैं क्या करता हूं, इसको नॉर्मल मेरा मेल आईडी जो भी है वहां पर जाता हूं, ये मेरा नॉर्मल मेल आईडी है। एचओडी कॉम से जो भी मेल आएगा उसको स्टार मार्क होना चाहिए, यानी क्या होना चाहिए, जब भी कोई एचओडी कॉम का, देखिए मैं पहले मेल भेजता हूं। ओके, आई विल सेंड द मेल कंपोज। मुझे किसको मेल भेजना है, संघवी.महेश को मेल भेजना है, तो मैं यहाँ पे मेल आईडी देता हूं sanghvi.mahesh@gmail.com। ओके, यहाँ पर मैं बोलता हूँ टेस्ट मेल। ओके, और मैं इसको बोलता हूँ कि ये मेल जो भी है इसको मुझे क्या करना है, भेजना है। यहाँ पे मैंने कुछ तो मैटर जो भी है वो दे देना था, वो मैंने दे दिया, और मैं उसको बोल रहा हूँ सेंड। जो भी मैटर मुझे टाइप करना था वो मैंने दिया, और उसको मैं क्या कर देता हूँ, सेंड कर देता हूँ। ओके, अपेक्षा आप आपका वीडियो बंद कर दीजिए। या थैंक यू। सो यहां पर आपको ये समझ में आएगा कि यहां पर मैं इस मेल को क्या करता हूं, भेज देता हूं। मैंने सेंड किया, मेल कहां पर चला जाएगा, मेरा जो भी इनबॉक्स है यहां पर वो मेल जो भी है वो आना चाहिए। सो मैं सर्च कर रहा हूं। ओके, मैं सर्च करने की कोशिश कर रहा हूं। एचओडी आईडी से मुझे, एचओडी कंप्यूटर से मुझे मेल आना चाहिए। ओके, यहाँ के यहाँ पे एक टैब से दूसरे टैब में मेल आने को कितना समय लगता है ना। देखिए ये वाला मेल आ चुका है, वाला मेल। ओके, लेकिन इसको ऑटोमेटिक स्टार मार्क नहीं हुआ है। ओके, लेकिन मेरे अब मुझे काम क्या है, जब भी ये मिलेगा अब मैं इसको स्टार मार्क करूंगा। ओके, मैं इसको स्टार मार्क करता हूं तो ऑटोमेटिकली स्टार हो रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये स्टार मार्क ऑटोमेटिकली आना चाहिए जब भी महेश संघवी से मुझे मेल आएगा। तो फिलहाल मैं सिंपलिसिटी के लिए इसको डिलीट कर देता हूँ। आई एम सिंपली डिलीटिंग इट। और मुझे कुछ ऑपरेशंस यहाँ पर करने पड़ेंगे। किसके थ्रू मेल आया, तो मैं फिल्टर के ऊपर जाता हूं। यहां पर संघवी एचओडी कॉम के थ्रू जब भी मेल आएगा, उसका मैंने मेल आईडी दिया, जब भी मेल आएगा तो ऑटोमेटिकली मैं क्रिएट फिल्टर कर रहा हूं। मैं क्रिएट फिल्टर के ऊपर क्लिक कर रहा हूं और स्टार मार्क आना चाहिए, स्टार इट ऑटोमेटिकली, उसको स्टार कर देना है। तो मैंने क्या किया, स्टार सिलेक्ट किया और क्रिएट फिल्टर बोल दिया। जैसे मैंने क्रिएट फिल्टर किया, देखिए अभी मैं मेल फिर से भेजता हूं। मैं कहां से मेल भेज रहा हूं, एचओडी कॉम से। किसको, जिस मेल आईडी के ऊपर मैंने फिल्टर को सेट किया है। ओके, वो मेल आईडी में यहां पर दे रहा हूं। ओके, वो मेल आईडी मैंने दिया। यहां पर मैंने उसको बोला टेस्ट मेल और ब्रैकेट में देता हूं न्यू। ओके, ऑटोमेटिकली स्टार मार्क इज एक्सपेक्टेड। ऑटोमेटिकली स्टार मार्क जो भी है वो आना चाहिए। ओके, मैं इसको सेंड कर देता हूं। जैसे ही मैं सेंड करूंगा मुझे चेक करना होगा कहां पर, इस वाले में इनबॉक्स पे। मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, अभी तक नहीं आया, फिर से रिफ्रेश कर रहा हूं, नहीं आया, फिर से रिफ्रेश कर रहा हूं। देखिए मेल आया है और उसको स्टार मार्क भी उसने ऑटोमेटिकली कर दिया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप यहां पर देख सकते हैं कि क्या होता है, कई बार मेल आ रहे हैं, उसको स्टार मार्क करो, उसको रिमूव करो, बहुत टाइम हमारा जाता है। कई बार जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का मेल मुझे आया है, मैं नहीं चाहता हूं कि ये मेल मुझे आना चाहिए, ये देखना नहीं चाहता हूं मैं, ये ऑटोमेटिकली डिलीट होना चाहिए। या गूगल अलर्ट्स के जो मेल आ रहे हैं ये नहीं आने चाहिए। ओके, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूं। यहां पर मैं डायरेक्टली गूगल अलर्ट्स का जो भी मेल आईडी है वो कॉपी कर लेता हूं, फिल्टर्स में चला जाता हूं, ये मैंने सिलेक्ट किया। मैं यहां पर क्रिएट फिल्टर में जाता हूं, इसको मैं बोल दूंगा कि वो जैसे भी ऐसे यहां से जब भी मेल आएगा इसको डिलीट कर दो। ओके, देखिए यहां पर 16 मेल्स ऑलरेडी आए हैं, यहां पर दिखा रहा है। वो पहले वाले मेल्स को भी डिलीट करना है क्या, हाँ करना है। मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूं और यहां पर बोल देता हूं क्रिएट फिल्टर। जैसे मैं क्रिएट फिल्टर करूंगा ये सभी के सभी मेल्स मेरे रिमूव हो चुके हैं। ये कहाँ जा चुके हैं, अब मेरे ऑटोमेटिकली यहाँ से रिमूव होके ये कहाँ चले जाएंगे, ट्रैश में चले जाएंगे। तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द फैबुलस फीचर। काफी जगह पे आप लोगों को क्या हो सकता है, ये यूज हो सकता है। इसमें मैंने आपको कुछ ही यहाँ पे क्या किए हैं, फिलहाल कुछ ही क्या दिखाया है आपको, फीचर्स दिखाए। आप पूरे फीचर्स का यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने आप अपना स्ट्रेंथ और भी बढ़ा सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, गूगलिंग गूगल, इसमें और बहुत सारे फीचर्स है। मैं यदि 1 दिन 2 दिन 3 दिन 10 दिन भी लूं तो फीचर्स कम पड़ेंगे, इतने फीचर्स इसमें अवेलेबल है। मैंने कोशिश की है आपका आई ओपनिंग करने की। आप लोग यदि इसके ऊपर फोकस करोगे, प्रॉपरली हर आइकॉन को देखोगे,
हर आइकॉन को क्लिक करने का इस्तेमाल करोगे तो काफी नए फीचर्स आपके सामने आएंगे। ये सारी चीजें आपके लिए अवेलेबल हो सकती है, आप इसमें और एक्सप्लोर कर सकते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई होप यू विल एंजॉय दिस एंटायर इंटर्नशिप सेशन। आपके स्किल सेट जो भी है इस तरीके से ही आपके हमेशा बढ़ते रहने चाहिए, मुझे खुशी होगी। एक लास्ट ट्रिक आपको देता हूं और उसके बाद मैं रुकता हूं। ओके और उसके बाद आप आपके क्वेश्चंस जो भी है चैट विंडो के ऊपर डाल सकते हैं। जो YouTube लाइव के ऊपर देख रहे हैं आप YouTube लाइव के ऊपर क्वेश्चंस डाल सकते हैं। जो यहाँ पर डायरेक्टली कनेक्टेड है जूम के थ्रू, ओके आप डायरेक्टली यहाँ पर आपके क्वेश्चंस जो भी है वो रख सकते हैं। मैं आपको एक सिंपल एक ट्रिक आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। वो ट्रिक कौन सा है? फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, आप यहाँ पर मेल पर हो, मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे कलर चेंज हो रहे हैं। देखिए आप आपके इनबॉक्स पर क्लिक करके देखिए, आपके इनबॉक्स पे आपको एक ही कलर आएगा। स्टार का कलर की बात मैं कर रहा हूं, पहले येलो कलर आया, फिर ऑरेंज कलर आया, फिर रेड कलर आया, फिर और दूसरा कलर आया। देखिए कलर चेंज हो रहा है। ओके आपके पास येलो ही कलर आ रहा होगा। यदि आपको लगता है कि आपके भी ऐसे कलर चेंज होने चाहिए, अब कलर चेंज क्यों होने चाहिए? आप क्या कर सकते हैं, कलर वाइज इसको क्या कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको यदि लगता है रेड कलर का, आपको क्या करना है, इसको हाई प्रायोरिटी मेल को आप लोग क्या कर दीजिए, रेड सेट कर दीजिए। आप रेड कलर का क्या कर दीजिए, स्टार सेट कर दीजिए। आपको यदि लगा कि जो मेल्स आपका काम कंप्लीट हो चुका है उसको आप लोग क्या कर दीजिए, ग्रीन कलर का जो भी है वो सेट कर दीजिए, जिससे आपको समझ में आएगा कि इस मेल का कुछ इतना मेजर इशू नहीं है। येलो कलर का मेल जो भी है वो लो प्रायोरिटी मेल रहेगा। इस तरीके से आप मेल्स का क्या कर सकते हैं, कलर जो भी है वो चेंज कर सकते हैं। और भी आपको डिफरेंट कलर चाहिए, आप यहाँ पर से कलर जो भी हो सकते हैं चेंज कर सकते हैं। तो होप आपको ये डिफरेंट डिफरेंट कलर जो भी वो दिखाई दे रहे हैं। यदि आपको चाहिए कि आपके भी ये डिफरेंट कलर्स आने चाहिए, फिलहाल आपका एक ही बाय डिफॉल्ट आएगा, दैट इज येलो। यदि आपको लगता है कि आपको डिफरेंट कलर्स आने चाहिए स्टार में, तो किस तरीके से करना है वो मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। आपको क्या करना पड़ेगा, सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाके आपको सेटिंग्स के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जनरल में आपको जाना है, जनरल टैब में। जनरल टैब में जैसे ही आप जाओगे तो आपके पास आपको ऑप्शन दिखाई देता है स्टार का। ओके बाय डिफॉल्ट आपके पास इस तरीके से ये दिखाई देंगे कि एक ही स्टार, आपको यहाँ पे स्टार्स दिखाई दे रहा है, आपको वहां पे आपको जाना है, वहां पे आपको बाय डिफॉल्ट एक ही स्टार दिखाई देता है। ओके यदि आप चाहते हैं कि सारे स्टार आने चाहिए, अब देखिए मैंने एक ही स्टार किया है, मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूं और सेव कर देता हूं। मैंने सिंगल स्टार रखा है। अब मैं देखो कलर चेंज करने की कोशिश करता हूं, अब कलर चेंज नहीं होगा, एक ही स्टार मुझे मिलेगा, दैट इज व्हाट, येलो। ओके लेकिन मुझे यहाँ पे डिफरेंट कलर्स आने चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट आपका ये स्थिति होता है। आपको इसको चेंज करना है तो आपको कहा जाना है, सेटिंग्स पे आप जाइए। सेटिंग्स में जाने के बाद सेटिंग्स के ऊपर बटन के ऊपर क्लिक कीजिए, जनरल टैब में जाइए। जनरल टैब में आपको स्टार्स वाले जो भी है स्टार नाम दिखाई देगा, वहां पर आप जाइए। देखिए आपको यहाँ पे स्टार्स दिखाई दे रहा है, ये स्टार्स के ऊपर जाइए। यहाँ पर आपको ये बोलता है कि बाय डिफॉल्ट 1 स्टार है, आपको 4 स्टार चाहिए या ऑल स्टार चाहिए। मैं ऑल स्टार ले लेता हूँ। तो सारे जो नीचे के स्टार थे वो ऊपर आ चुके हैं। ये जैसे ही आएंगे यानी ये सारे के सारे स्टार का आप लोग क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसको सिंपली नीचे जाके क्या कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसको सेव कर देता हूँ, ओके सेव कर देता हूँ, अब आप देखिए मैं इसको जब भी बार बार क्लिक कर रहा हूँ तो उसके कलर देखिए, उसके जो भी आइकॉन्स है वो क्या होते जा रहे हैं, उसके कलर जो भी हो क्या होते जा रहे हैं, चेंज होते जा रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स इसके क्या कर सकते हैं, चेंज करके रख सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ फीचर्स जो थे मैंने अनकवर करने की कोशिश आपके सामने की है, और गूगल को आप अच्छी तरीके से क्या कर सकते हैं, और भी गूगल कर सकते हैं। आपको सिंपली क्या समझना है, मैंने कुछ ही फीचर्स आपको दिखाए हैं, और भी ज्यादा आपको एक्सप्लोर करना होगा तो आप लोगों ने क्या करना चाहिए, सेटिंग्स में जाना चाहिए। सेटिंग्स में जाके, ऑल सेटिंग्स में जाके, यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखाई देगी। ये सारे आप ठीक से पढ़ के, इसके वीडियोस भी नेट के ऊपर अवेलेबल है, ये पढ़ के आप सब इसके साथ में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। कुछ चीजें आपको सिंपली दिखा देता हूं आई ओपनिंग के लिए कि क्या क्या करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, मेरे यहाँ पर एक एरो आया है, वो एरो बता रहा है मुझे कि ये 2 बार मेल आया है। इसका मतलब क्या है, जब डबल ग्रेटर देन साइन इसके अंदर दिखाई दे रहा है, इसका मीनिंग ये होता है कि जिसने भी मुझे मेल किया है वो पर्सनली किया है, एक ही बंदे ने किया है। ओके जब आपको इस तरीके से मेल आएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी एरो वगैरह कुछ भी नहीं आया है, इसका मतलब क्या है कि ये पूरे मेलिंग लिस्ट को भेजा हुआ है, यानी गूगल ग्रुप के थ्रू आया है, उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मेरे लिए नहीं है। ओके तो इसी तरीके से आपको अलग अलग जो भी चीजें है वो यहाँ पर दिखाई देगी। और एक अच्छा फीचर आपको दिखाई देगा, आप देखिए मेरा इनबॉक्स जो भी ऊपर आपको दिख रहा है ना, वहां पे 100+ ऐसे मेल आपको दिखाई देंगे। ये भी क्यों आ रहा है, क्योंकि ये भी आपको कहीं ना कहीं पे जाके सेट करना पड़ता है, पर्सनलाइजेशन में जाके सेट करना पड़ता है। जैसे आप सेट करोगे आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, मैंने कोशिश की है आज
आपका जो भी सेशन है गूगलिंग गूगल का, वो आपको उसमें चीजें जो भी है वो देने का। आई होप आप सभी लोगों ने इस सेशन को एंजॉय किया रहेगा।